Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Namaste Prabhupada. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Chaitanya Nityananda Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Everyone please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone will sing together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Jaya Radha Vichai Govinda, Radha Vichai Govinda Radhe, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we'd like to welcome you all once again for this very special session that we've kept on Ramayana. आप में से कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली है तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो हिंदी में करना चाहिए हमको? ठीक है, हम हिंदी में करेंगे, पूछते नहीं है। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में करेंगे। ओके, so we would like to welcome you all for this very special session that we've kept on Ramayana. Why Ramayana? There are two reasons why we've kept it on Ramayana, because I love Ramayana so much, first of all. So I wanted to deliver on Ramayana only. And second reason why we kept it on Ramayana is because we're going to have this Ram Navami festival coming up in next 2 weeks. 17th of April we're going to celebrate Ram Navami in this temple. In evening you'll be having a very huge festival. There'll be Abhishek going on, then Kirtan, Katha and Mahaprasad for all of us. Okay? So before we actually get into this Ram Navami festival, it is really important for us to understand that what is the kind of mood जो हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, वो हमारे अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उस भाव के साथ में हम जब हम उस फेस्टिवल में एंटर करते हैं तो हम उस फेस्टिवल को और ही अद्भुत तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और भगवान के भी आनंद के लिए हमें इस कथा को सुनना चाहिए। राइट? सो हम वो प्रयास आज करने वाले हैं। बहुत सारी कथा होने वाली है रामायण के अराउंड इन कमिंग वीक्स फॉर श्योर। तो हमने सोचा हम स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके, सो हम सब क्या करेंगे, पहले हम अपने आईज क्लोज करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम। ठीक है, हृदय में हम लिटरली हमको हृदय में प्रार्थना करनी है अपने भगवान से, भगवान श्री राम से, श्री राधा गोविंद जी से, श्रील प्रभुपाद से और सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी से। हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान वो मूड प्रोवाइड करे, राइट? सो दैट हम उस राइट मूड में, राइट कॉन्शियसनेस में आ पाए और भगवान हमारे हृदय में, चित्त में हमारे भगवान विराजमान हो, राइट? ताकि हम उस राइट कॉन्शियसनेस में ऑलवेज रह पाए, राइट? सो वी ऑल वुड लाइक टू प्रे टू श्री राधा गोविंद जी, सीता राम लक्ष्मण हनुमान एंड श्रील प्रभुपाद दैट वी गेट इनटू दैट right kind of a mood and consciousness so that we can hear more and more about his katha, Ramayana or Krishna Katha, be it any Katha, and we try to serve him as much as possible and take his names, okay? Be it Lord Ram or Shri Krishna, okay? You're going to have a lot of life lessons coming from Ramayana which you want to carry with you for whole your life. आप अपने जीवन में इस जो भी आज हम शिक्षाएं सीखेंगे रामायण से वो आप चाहेंगे। खत्म हो जाएगा ना सेशन, उसके बाद लगेगा लिखना चाहिए था यार, है ना? तो मैं पहले ही आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ बिकॉज इट्स लोडेड लेक्चर, देयर आर सो मेनी लेसन्स। ओके, माता जी आवाज़ आ रही है पीछे तक? लास्ट में थोड़ा और बढ़ा दीजिए बोले। हाँ, हरे कृष्णा, इको हटा दो। हरे कृष्णा। ओके, सो अभी तक आपने जो राम कथा सुनी होगी, ये वाली राम कथा हम थोड़ा डिफरेंटली करने वाले हैं। ओके, सो प्रॉब्ली आपने इस तरह से, होपफुली आपने इस तरह से कभी राम कथा सुनी नहीं होगी, राइट? सो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको ऐसा लगे कि हमको रामायण तो पता ही नहीं है, हमने जो देखा है आज तक बहुत टीवी पे, लेकिन आपको लगने वाला है कि आपने राम कथा आज तक सुनी ही नहीं है। रामायण को और हमारे शास्त्रों को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं वो आज हम आपको एक झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये सारा ज्ञान हमारे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आ रहा है, स्पेशली हमारे हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु जी, मेरे स्पेशल फेवरेट, राइट? सो उनके लेक्चर्स, बुक्स को पढ़ के और उनके लेक्चर्स को सुन के मैंने इसको थोड़ा सा बनाया है। ओके, सो मैं वैसा का वैसा आपको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो हमने अपना सेशन जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है आज। फर्स्ट सेक्शन में जो है वो क्या आने वाला है कि रामायण में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, जितने सारे पात्र हैं, उन सभी पात्रों के नामों से हम कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीख सकते हैं जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ आफ्टर दिस क्लास यू विल बी एबल टू अप्लाई एवरीथिंग। ओके,
सो वो क्या है वो हम सीखने का प्रयास करेंगे, वो होगा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल रामायण को हम देखेंगे एज ए पिक्चर हम रामायण को देखेंगे कि क्यों वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ओके, और उसको हम अपने जीवन में कैसे डेली लाइफ में उतार सकते हैं। वो होगा सेक्शन 2। और सेक्शन 3 होगा जिसमें आपको मुझे सैम्पल स्टोरीज बताने वाला हूँ रामायण की, और वो स्टोरीज से क्या हम सीख सकते हैं आगे, राइट। और हर एक स्टोरी रामायण की इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2-3 स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और उससे हम कितनी गहन और कितनी डेप्थ में हम कुछ लर्निंग सीख सकते हैं, वो भी हर एक स्टोरी में उतना ही मर्म होता है, ओके। सो वी विल स्टार्ट। जैसे गुलाब जामुन होता है ना, आप कभी भी कहीं से भी खाइए, अगर अच्छे से बनाया गुलाब जामुन तो कहीं से भी खाइए आपको उतना ही रस आता है। ऐसा थोड़ी है फ्रंट से खाया तो अच्छा लगेगा, बैक से खाया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही हमारे हर हरी कथा का, कोई भी हरी कथा उठा लीजिए, उतना ही मर्म हर एक कथा में होता है, बस आपको उस तरीके से जानना जरूरी है उसको, ओके। सो वी विल बिगिन। स्पेशली रामायण की जब बात आती है तो हम कुछ इस टाइप से हो जाते हैं कि रामायण आई मीन अच्छी है, बहुत सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, टीवी पे देखी है, लेकिन इतना आइडल कैसे कोई हो सकता है ना। ये तो हम नहीं कर सकते अपने जीवन में। इस टाइप से फीलिंग आती है ना, भगवान श्री राम इतने अच्छे पुत्र, इतने सुंदर पति, इतने अच्छे महाराजा, राजा एक प्रजा के, क्या क्या नहीं था उनमें। लेकिन हम तो हमारे आसपास में हमको दुर्योधन दिख रहे हैं, तो कहीं धृतराष्ट्र हैं, तो कहीं हम दुशासन टाइप बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो हम थोड़ा रिलेट नहीं कर पाते हम स्क्रिप्चर्स से, और फिर हम उनको पढ़ते ही हैं, राइट। तो हमें उनको कुछ इस नज़रिए से देखना चाहिए जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट सेक्शन जो है रामायण का अपने इस सेशन का, वो है रामायण के चरित्रों में, रामायण के डिफरेंट कैरेक्टर्स के नेम्स से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम ऑफ कोर्स क्या होगा? भगवान श्री राम, राइट। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सो कीप दैट एनर्जी गोइंग, ओके। सो भगवान श्री राम का नाम, जैसे सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान श्री राम की जगह पे आप बताइए भगवान श्री कृष्ण के नाम का क्या मतलब होता है, अगर किस डिवोटीज को पता है तो, ओल्ड डिवोटीज एटलीस्ट। भगवान श्री कृष्ण के नाम का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है ये कृष्ण, उसका मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव। ही इज सुप्रीमली अट्रैक्टिव, आई टोल्ड यू इन डिवाइस, राइट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है? सुप्रीमली अट्रैक्टिव, यानी सर्व आकर्षक है। वैसे ही भगवान श्री राम जो है, उनके नाम का मतलब होता है ही इज द सोर्स ऑफ प्लेजर, ओके। वो आनंद का भंडार है, राइट। सो भगवान श्री राम का नाम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आनंद को। जैसे आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है भगवान श्री कृष्ण का नाम, ठीक उसी प्रकार राम का नाम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आनंद को। तो हमारे जीवन में भी ये वाली लाइन मेरी बहुत आने वाली है बार बार यहीं से लर्निंग आती है। सो हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं, राइट। जिनको देखते ही हमारे चेहरे पे स्माइलिंग फेस बन जाता है, राइट। सो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में हमें भगवान श्री राम की अनुभूति कराते हैं, राइट। हम सब चाहते हैं कि हमारे सामने हर कोई स्माइलिंग फेसेस रहे, कोई भी डार्क फेसेस, डाउन फेसेस नहीं रहे, राइट। हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो सबसे पहले एक आपने एक सुना होगा, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, है ना, ऐसा सुना रहेगा आपने, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें स्वयं को बदलना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शीशा जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने जीवन में खुद को परिवर्तित करना है और एक ऐसा इंसान बनना है जिसको देख के सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, राइट। ताकि हम उनके जीवन में उनको राम का अनुभव करा पाए, उस आनंद का अनुभव करा पाए जो वो खुद चाहते हैं हमसे, और जो हम भी चाहते हैं सबसे, राइट। सो हमें क्या करना है? हमें हंसना है, स्माइल। सबके स्माइलिंग फेसेस रहेंगे तो अच्छा रहेगा, so that we can make others feel the presence of Ram all around, right? So do you all would smile? For no reason you should smile, okay? For no reason you are crying also, na? Right? We keep crying for no reasons. Then why can't we laugh or smile for no reasons, right? एक बार एक प्रभु जी, गौर गोपाल प्रभु जी says this very wonderfully. I will not be able to repeat it well, but he says a joke. People laugh.
He says it again, same joke, people laugh. He says it thrice, then again people laugh. लेकिन उनकी जो है हंसने की इंटेंसिटी वो धीरे धीरे कम होती जाती है और 4-5 बार वो बोलते हैं कि क्या प्रभु जी कुछ गड़बड़ है क्या आपके लूप में क्यों चले गए हो. So people stop laughing for the same joke again and again. Then why do we cry for the same problem again and again? Right? So let us bring that smile on our faces so that we can bring the presence of Ram in front of all, every moment in their life. Okay? So Ram represents what? Anand, source of pleasure. So I want to smile always so that people smile and they feel the presence of Lord Ram. Okay? The opposite character to Ram is what? Ravan. रावण जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं? उसके ऑपोजिट होते हैं जिनको देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान पूरी चली जाती है, पूरा हम डल हो जाते हैं, हमारे हृदय में पूरा का पूरा उसके लिए मतलब हम गुस्सा होना स्टार्ट हो जाते हैं. राइट? हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको देख के हमें हमारी मुस्कान चली जाती है. कुछ लोगों के जीवन में उनके बॉस होते हैं, हमारे तो बॉस बहुत अच्छे हैं. नॉट बिकॉज इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, हम उनके सामने भी ये बात बोलते हैं, है ना. तो कुछ लोगों के जीवन में उनके बॉस होते हैं, किसी के जीवन में उनकी वाइफ्स होती है, किसी के जीवन में उनके हस्बैंड होते हैं. बट कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनको देख के हमारे को हमारा पूरा सुख चैन सब चला जाता है. तो वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं रावण को. और हमें क्या नहीं करना है अपने जीवन में, हमें रावण जैसा व्यवहार नहीं करना है कि लोग रावण की अनुभूति करें अपने जीवन में हमारे चक्कर में. ओके, सो वी डोंट हैव टू बिकम लाइक दैट. द थर्ड कैरेक्टर ऑफ रामायण इज दशरथ. वेरी वंडरफुल कैरेक्टर. दशरथ का मतलब क्या होता है? दशरथ का मतलब होता है दशरथ, जिनका रथ दसों दिशाओं में भ्रमण कर सकता है, उनको कहते हैं दशरथ. उनको एक वरदान था कि उनका रथ जो है वो दसों दिशाओं में भ्रमण कर सकता था. दशरथ का एक और मतलब होता है जिनकी इंद्रियां, दसों इंद्रियां उनके संयम में है. वन हुज ऑल 10 सेंसेस आर अंडर हिज कंट्रोल इज कॉल्ड दशरथ. राइट? और दशरथ कहाँ पे निवास करते हैं? कहाँ पे निवास करते हैं? अयोध्या में ना. और अयोध्या रिप्रेजेंट करती है मन को, हमारे माइंड को. ओके, सो जो व्यक्ति की 10 इंद्रियां उसके संयम में होती हैं और जो अयोध्या में वास करता है, अर्थात उसका मन भी उसके कंट्रोल में होता है. जिसकी 10 इंद्रियां उसके संयम में होती है और जिसका मन भी उसके संयम में होता है, उसके जीवन में कौन प्रकट होते हैं? भगवान श्री राम. अभी हम सब चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में भी भगवान श्री राम प्रकट हो. हम ऑफकोर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में एज ए पुत्र प्रकट हो, लेकिन हम एटलीस्ट ये तो चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में, हृदय में, एटलीस्ट हमारे चित्त में वास करे, ताकि हम उनको हर एक मोमेंट याद कर पाए. हम चाहते हैं ऐसा. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी 10 इंद्रियां जो होती है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 होती है हमारी ज्ञानेंद्रियां, उसको हमें संयम में, कंट्रोल में लाने का प्रयास करना चाहिए. उसी के साथ साथ हमें अपने मन को भी कंट्रोल में लाने का प्रयास करना चाहिए. और तब हमारे जीवन में भगवान श्री राम स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं. राइट? जो भक्ति मार्ग है उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव, द टारगेट इज व्हाट? दैट वी वांट टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन एज वेल, आउटसाइड एंड विद इन. राइट? थ्रू हिज नेम्स एंड एटसेट्रा. तो वो कैसे होगा? हमें इंद्रियों का संयम थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए करने का, और अपने मन को कंट्रोल करने का भी प्रयास करना चाहिए. राइट? तो दशरथ रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी 10 सेंसेस उनके कंट्रोल में होती है, और अयोध्या रिप्रेजेंट करती है हमारे मन को. अयोध्या ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेस वेयर देयर इज नो युद्ध, अयुद्ध. जहां पे कोई फाइट नहीं होती है उसको बोलते हैं अयोध्या, है ना. समझ में आ रहा है आपको? तो जहां पे 10 इंद्रियां संयम में होती हैं, जहां पे मन संयम में होता है, जहां पे कोई फाइट नहीं होती है, वहां पे प्रकट होते हैं भगवान श्री राम. समझ में आ रहा है आपको? आप लिख रहे हैं ना, अपने मन में मत लिखिएगा. मन में बहुत लिख लेते हैं आप लोग. ओके, तो नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ रामायण इज रावण अगेन. दशानन भी उनका एक नाम होता है. दशानन जो है अर्थात रावण, दशानन भी उनका एक नाम होता है. वो रिप्रेजेंट करते हैं उन व्यक्तियों को जिनकी 10 इंद्रियां उनके संयम में नहीं होती हैं, ऑपोजिट ऑफ दशरथ. और जो लंका में वास करते हैं, अर्थात ऑपोजिट ऑफ अयोध्या, जहाँ पे सारे युद्ध होते रहते हैं. लंका रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ प्लेस वेयर देयर इज ऑलवेज फाइट गोइंग, जहाँ पे हमेशा झगड़ा, फसाद, ये वो सब कुछ होता रहता है, उसको बोलते हैं हम लंका.
और लंका में कोई सोता नहीं है, बताया आपको, लंका में लोग सोते ही नहीं है, नींद ही नहीं आती उनको। तो देखिए आप इससे एक और चीज़ सीख सकते हैं, जहाँ पे जिस व्यक्ति की 10 इंद्रियां उसके संयम में नहीं होती है तो सबसे पहले उसकी क्या उड़ती है? नींद उड़ जाती है। आप बोलेंगे प्रभु जी पुणे में भी ऐसी है आजकल, तो कहाँ सोते हैं हम लोग रात में? बीपीओ में काम कर रहे हैं, है ना, रात में काम, सुबह सो रहे हैं आराम से। तो सिमिलर ही है, लंका टाइप ही है अभी भी, है ना। तो हमारी अगर नींद उड़ जा रही है तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम शायद हमारी इंद्रियों को हम थोड़ा भी संयम में नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अनदर कैरेक्टर ऑफ रामायण, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज वाली। वाली को एक वरदान था कि उनके सम्मुख कोई भी अगर प्रकट होता था युद्ध करने की इच्छा से, तो उनकी सारी की सारी शक्तियां जो थी वो कौन ले लेते थे? आदि शक्ति जो थी वो वाली खुद ले लेते थे। अगर कोई उनके सामने प्रकट होता था युद्ध की इच्छा से, तो वाली उनकी आदि शक्ति ग्रहण कर लेते थे, है ना। तो वाली क्या हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है? टेम्पटेशंस को, प्रलोभन। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको उसको अगर गुलाब जामुन ला के दिया जाए सामने उसके, या फिर चमचम ला के दी जाए, या फिर और भी कुछ रस मलाई और रबड़ी, है ना, तो उसके सामने क्या होता है? उसको मना करने की जो शक्ति होती है वो आधी गुलाब जामुन ले जाता है ना। तो वैसे ही कुछ वाली भी है। वाली जो है वो क्या है? टेम्पटेशंस। सो टेम्पटेशंस हमारे जीवन में ऐसे ही हमारे साथ करती है। जिस चीज़ को हमें मना करना होता है वो हमारी आधी शक्ति ले जाते हैं मना करने की, है ना। तो जब आपके सामने कुछ ऐसा टेम्पटेशन आ रहा है तो आपको क्या याद आना चाहिए कि ये वाली है जो मेरे सम्मुख प्रकट हुए, इनको प्रणाम करके और इनको विदा कर देंगे हम, है ना। इनका हम जाके उनको ग्रहण नहीं करेंगे अगर हम डायबिटिक हैं। तो अगर हमारी सिचुएशन जो है कुछ खराब है जिसमें हमें उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्पटेशन को, तो वी शुड अवॉइड। ओके। तो लास्ट टाइम मैं जब ये क्लास दे रहा था उसके बाद मैं सर्विंग कर रहा था, तो एक दो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जी ये वाली जो है ये दूर रखो आप मुझे मत दो। तो ऐसे ही हमको याद रखना है, जब सिचुएशन आएगी ना हमारे जीवन में, तो हाथों हाथ हमें उसको याद रखना है कि ये भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करता है, ये बंदा इतना स्माइलिंग फेस है, एंड दिस गाय इज प्रॉब्ली, वी डोंट हैव टू जज पीपल एनीवेज, फॉरगेट अबाउट रावण, पीपल बीइंग रावण, वी हैव टू जज आवरसेल्फ ऑलवेज दैट आर वी बीइंग रावण? नो, गुड। आर वी बीइंग राम? आर वी ट्राइंग टू bring the presence of Ram in their life? Yes, all good. Okay, अयोध्या, लंका, दशरथ, दशानन, वाली, ये सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए जिनके जीवन से, जिनके नामों से हम कुछ सीख सकते हैं। तो we'll move on to the second part of this session today, which is that we want to see the entire Ramayan. How does this Ramayan look like? और वाल्मीकि जी ने, यस प्रभु जी, हनुमान जी के बारे में बहुत आने वाला है आगे, बिकॉज रामायण जो है इज फुल ऑफ राम, एंड मोर देन राम इट्स मोर अबाउट हनुमान जी। आई विल टेल यू मोर अबाउट इट इन कमिंग टाइम। ओके, सो संपूर्ण रामायण को हमें ओवरऑल ऐसे बर्ड्स आई व्यू से देखना चाहिए। जो रामायण है वो कहाँ पे होती है? मोस्टली मेजरली 3 सिटीज में रामायण हुई है। एक होती है हमारी, कहाँ पे होती है रामायण? एक होती है ऑफकोर्स अयोध्या में। दूसरी मेजर पार्ट ऑफ रामायण इज इन अयोध्या। द सेकेंड मेजर पार्ट इज इन किष्किंधा, एंड थर्ड मेजर पार्ट इज इन लंका, है ना। तो ये सारे प्लेसेस भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। अयोध्या जो है वो रिप्रेजेंट करती है संस्कृति को, कल्चर। ओके। जो लंका है वो रिप्रेजेंट करती है उसके ऑपोजिट, वल्चर, विकृति। संस्कृति है हमारी लंका, हमारी अयोध्या, तो उसके ऑपोजिट है हमारी लंका, विच इज विकृति। कल्चर है तो ये वल्चर है। और बीच में हमारी सुंदर, जहां हम बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, देयर आर पीपल हु बिलोंग टू लंका एंड देयर आर सम पीपल हु बिलोंग टू किष्किंधा। तो किष्किंधा रिप्रेजेंट्स नेचर, संस्कृति, सॉरी प्रकृति, नेचर। ओके। सो अयोध्या क्या रिप्रेजेंट करती है? लंका, बीच में हमारी किष्किंधा, और किष्किंधा रिप्रेजेंट करती है संस्कृति को, नेचर को, सॉरी प्रकृति को, नेचर को। ओके। सो अयोध्या के लोग जो होते हैं वो बहुत ही सुसंस्कृत होते हैं, बिकॉज अयोध्या जो है वो रिप्रेजेंट करती है संस्कृति को, राइट।
तो बहुत ही चरित्रवान लोग रहते हैं। और कम मुनि बताते हैं रामायण में, उनके खुद के रामायण में वो बताते हैं कि अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ पे कोई भी ताला नहीं बिकता और जहाँ पे कोई भी दान ही नहीं देता। बताओ कैसी जगह है, कोई दान ही नहीं देता। अगर हम ऐसे टेम्पल वहाँ बनाए तो हमारा कैसे चलेगा, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी हमारे पास, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्यों ताला नहीं बिकता और क्यों कोई दान नहीं देता वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे कोई ताला इसलिए नहीं बिकता क्योंकि कोई वहाँ पे ताला लगाता ही नहीं है, कोई चोरी ही नहीं करता वहाँ पे, है ना। और कोई भी वहाँ पे दान नहीं देता क्योंकि कोई भी वहाँ पे दान, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दे आर ऑल फ्लरिश्ड पीपल, सुसंस्कृत, बहुत ही उनके पास धन वन की कोई कमी नहीं है कुछ खास। तो वहाँ पे दान देने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभु जी वाज टेलिंग इन हिज लेक्चर, शुक्लास प्रभु वाज टेलिंग इन हिज लेक्चर दैट व्हेन ही कंडक्ट्स प्रोग्राम इन गोवा में जब प्रसाद बच जाता है, तो जैसे यहाँ पे कहीं प्रसाद बचता है तो हम जाते हैं फूड फॉर लाइफ के लिए, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने चले जाते हैं इधर उधर स्लम एरियाज में। अभी वहाँ पे जब प्रसाद बचता है तो वहाँ पे कोई स्लम एरिया है ही नहीं कि वो वहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करे, है ना। तो देखिए कि गोवा में अभी इस कलयुग में, गोवा वैसे तो नरक का रास्ता है पूरा, है ना, लेकिन अभी इस कलयुग में भी गोवा में काफी ऐश्वर्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिसेंटली दे आर डूइंग, राइट। तो सोचिए फिर अयोध्या कैसी रहेगी। अभी इस सेशन में आई वांट टू टेक यू टू अयोध्या। बाय द वे, बाय 12:30 वी शुड बी इन अयोध्या। अपने मन से, मानसिक रूप से हम अयोध्या में जाना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा फोकस वहां पे कीजिए, ओके। तो सोचिए कि अयोध्या कैसी नगरी रही होगी अपने समय में, कि वहां पे कोई भी दान नहीं देता और कोई भी वहां पे ताला नहीं खरीदता और बिकता नहीं है वहां पे कोई ताला, राइट। कितने अमेजिंग लोग रहे होंगे ना। उसके ऑपोजिट है हमारी बहुत ही प्यारी सी लंका, जहाँ पे सारे लोग वल्चर्ड कैटेगरी के आते हैं। सुसंस्कृत के ऑपोजिट क्या होता है, विकृति, विकृत मेंटालिटी के सारे लोग रहते हैं वहां पे, राइट। और सारा का सारा माल वहां पे चोरी गई है, पूरी की पूरी लंका ही चोरी की है वहां पे। तो कुबेर की नगरी थी और रावण ने आके उसको हत्या लिया, राइट, इज इट नॉट। और बीच में आती है हमारी किष्किंधा। किष्किंधा जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्रकृति को, नेचर को, राइट, हम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जो किष्किंधा है वो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि जैसे आप बीच पे होते हो कभी कभी, राइट। सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ, आई मीन एट द एज ऑफ द बीच, आप कहाँ पे होते हो, आप धरती पे होते हो कि आप पानी में होते हो। कुछ समय आप धरती पे होते हो तो कुछ समय बाद देखोगे तो आप पानी में रहते हो, है ना। यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट यू आर इन वाटर और यू आर एट द लैंड, राइट। कुछ इसी प्रकार जो है हमारी किष्किंधा भी होती है, राइट। वहाँ के लोग जो होते हैं, कभी अगर हनुमान जी का एसोसिएशन कर लिया तो बहुत ही अच्छे भक्त बन जाते हैं, और फिर कभी वाली का एसोसिएशन कर लिया तो बहुत ही अभक्त बन जाते हैं, ओके, राइट। तो कुछ इस प्रकार के लोग भी हम हैं। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे हमें, मेरी बातें करूंगा मैं पूरे लेक्चर में, आपके लिए कोई कमेंट नहीं है। सुबह सुबह आप मिलेंगे 4 बजे 4:30 बजे, प्रभु जी वाह, धोती कुर्ता बिल्कुल तिलक लगा के रेडी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंगल आरती में चल रहे हैं, गुरु पूजा बढ़िया, बहुत बढ़िया कीर्तन चल रहा है, प्रसाद खा रहे हैं, बस भगवान हरि की कथा और हरि का नाम ही जपना है हमें तो सुबह सुबह। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दिन आती है, फिर शाम होती है, रात को मिलिए आप तो आपको हम लंकावासी बन के मिलेंगे, राइट। सो कुछ इसी प्रकार हमारा भी जीवन होता है, जब हम चेंज होते रहते हैं। एक समय पे हम आपको अयोध्यावासी दिखेंगे और एक समय पे हम लंकावासी बन जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है हमारे जीवन में, हमें हमेशा अयोध्यावासी के रूप में ही रहने का प्रयास करना है, राइट। ऐसे नहीं करना है कि सुबह को अच्छे तो शाम को असली रूप का दर्शन हो रहा है हमारा, राइट। तो इस प्रकार के होते हैं किष्किंधावासी। किष्किंधा के लोग जो होते हैं, विल स्टार्ट विद अयोध्या। अयोध्या के लोग जो है वो बहुत ही ग्रेटफुल पीपल होते हैं, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट। उसके ऑपोजिट हमारे होते हैं अनग्रेटफुल पीपल फ्रॉम लंका, राइट। और उसके बीच में होते हैं हमारे किष्किंधावासी,
जो क्या होते हैं अकृतज्ञ. Like sometimes they're grateful and sometimes they're not. Again, like just like the beach example that I gave you, right? Ayodhya Vasi, full of gratitude, always feeling so grateful for what you have done in their life. है ना, हमेशा आपको कृतज्ञता आपके सामने व्यक्त करते रहेंगे. माता सीता का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है रामायण में. जब माता सीता, जब सब लोग सारा युद्ध कंप्लीट होके फाइनली हमारे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा होता है, तो उस समय पे इन द मिडल ऑफ दैट फेस्टिवल, सच अ बिग फेस्टिवल, और कोई तो रंग ऐसे उछाल देता है, अलग अलग टाइप के रंग उछल रहे हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो ऐसे लाल रंग ऊपर उछलता है. तो माता सीता वो देख के उनको जटायु की याद आ जाती है. जब जटायु उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहा था और उनको लंकेश जो थे, रावण जो थे, उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मारा और उनका जो खून था वो हवा में ऐसे उड़ गया था. तो उस समय जब एक लाल रंग ऐसे हवा में उड़ा तो उनको उस सीन का याद आ गया. आप देखिए, हमारे जीवन में जब बहुत ही सुंदर अवसर होता है, जब हमारे घर में कोई शादी हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, या फिर जैसे माता सीता के एग्जाम्पल में उनका राज्याभिषेक हो रहा था उनके भगवान श्री राम का, उस समय अगर आप इतने कृतज्ञ हैं कि यू आर एबल टू रिमेंबर दोज टाइम्स व्हेन समबडी हेल्प्ड यू आउट एंड दे गेव अप देयर लाइफ फॉर यू टू बी सेव्ड, राइट? तो क्या हम इतने कृतज्ञ रह पाते हैं? वो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए. कोई अपने इतने सुंदर समय में भी उस वाक्य को याद रख पा रहा है? वैसे होते हैं हमारे अयोध्यावासी. और उसके ऑपोजिट है हमारे लंकावासी, कंप्लीटली अनग्रेटफुल पीपल. एक बार रावण ने तपस्या करी खूब अच्छे से, उन्होंने तपस्या करी शिव जी की, और शिव जी हमारे बिल्कुल भोले भंडारी है, तो प्रकट हुए, उनकी कठोर तपस्या को उन्होंने स्वीकार किया और वो प्रकट हुए, बोला कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग सकते हो. तो उन्होंने क्या 2 वरदान मांगे होंगे आप सोचिए. पहला वरदान मांगा उनसे कि आप मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान कीजिए. एक पर्टिकुलर लिंग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने उनको दिया. दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मुझे पार्वती चाहिए आपकी. अभी आप देखिए, आपके आराध्य हैं वो, जिनकी आप पूजा करके इतना मेहनत से आपने इतनी घोर तपस्या करी है उनको प्रसन्न करने के लिए, और आप मांग क्या रहे हो उनसे? उनकी खुद की अर्धांगिनी पार्वती उन्होंने दे दी. वो आगे की लीला है, वो हम कैसे हुआ वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, उन्होंने दी. सो दैट इज द काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन लंका, कंप्लीटली अनग्रेटफुल पीपल. एंड देन कम्स इन द मिडल where we belong to, most of us, is Kishkinda, akritagya. Sometimes you are grateful, like you have come in today's class. We are trying to remind you that you have to become grateful. आपको हम याद दिलाते हैं हर संडे को कि हमको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए उनके अलग अलग कार्यकलापों से, राइट? चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड, विजिटिंग टेम्पल एटलीस्ट वंस इन अ वीक, doing some kind of a seva, hearing, all of these activities that we have been teaching you. और आप बहुत ही चार्ज्ड अप होके जाते हैं और धीरे धीरे वो चार्ज्ड अप एनर्जी जो है वो आपकी लो होती जाती है. तो हम क्या होते हैं, मंडे को तो अगेन अयोध्यावासी, है ना? वाओ, अमेजिंग प्रभु जी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन अटेंडिंग योर वंडरफुल क्लासेस एंड ऑल ऑफ दिस. I am so grateful to Srila Prabhupada that he has done this for us. And today morning I was also saying the same thing to Prabhupada. I am so grateful that because of your presence and you have your life that you have given for this mission of ISKCON, we are so fortunate that we have got it just like that. I was saying the same thing half an hour back, है ना? क्या ये कृतज्ञता हमारी बनी रहेगी सैटरडे तक भी, तो हम अयोध्यावासी हैं. Otherwise, somebody will have to come in our life to remind us again that, come on, your parents have done a lot of things for you. Not only you become grateful when they give you some gifts, some chocolate or a burger or pizza or something, right? Mama, I am so grateful because you have given me this. But when you don't give me this, I am not grateful anymore. है ना? So that is what we usually do. So we should avoid that kind of mentality and be grateful all the times. एक बहुत ही सुंदर सा वो याद आ गया मुझे. मतलब kids are very amazing nowadays. They are like so funny and very smart.
A little 5 years old girl goes to a shopkeeper and says, "Uncle, uncle, मैं आपको कैसी लगती हूँ?" तो अंकल, अभी छोटी बच्ची है इतनी प्यारी सी, तो बोला, हाँ बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया लगती हो आप। अच्छा, तो फिर अपने बच्चे से मेरी शादी कराओगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? तो बोलते, हाँ हाँ बेटा, यस श्योर, आई विल गेट यू मैरिड टू माई सन इन फ्यूचर। तो अपने होने वाली बहू को एक चॉकलेट नहीं खिलाओगे क्या? So kids are very smart nowadays, right? So we have to remember this, that we are supposed to be not in Lanka, people who are completely ungrateful. We also don't have to become people like Kishkinda Vasis, who are forced to, who are reminded of gratefulness and gratitude in all the time. Rather, we should try to come to side of Ayodhya, where we are always grateful, right? जैसे सुग्रीव थे ना, तो जब किष्किंधा कांड में आता है, जब 4 महीने भगवान ने उनको समय दिया कि ये जो चतुर्मास है इसको बीत जाने दो, उसके बाद माता सीता का हम खोज में निकलेंगे। तो पहले तो उन्होंने जब उनकी सहायता करी, उनको पूरा राज्य दिला दिया, तो अगेन ही बिकेम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज ही केम इन द एसोसिएशन ऑफ हनुमान एंड ही केम इन द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ डायरेक्टली, राइट? एंड लॉर्ड हेल्प्ड हिम आउट, सो ही बिकेम कंप्लीट ग्रेटफुल पर्सन। लेकिन आफ्टर 4 months व्हाट हैपेंड? He forgot everything. He was like enjoying in all that opulent kingdom with his wife and other people, है ना? ऐसे ही था उसका, भूल गया। 4 महीने बाद सब साफ हो गया। But this is called classic Kishkindhavasi people. Sugriv is an example, right? Somebody had to come and remind him again. लक्ष्मण, भगवान ने उनको बोला जरा याद दिला के आओ उनको कि 4 महीने बीत गए हैं और हमें अभी सीता की खोज में निकलना है। हमारे लक्ष्मण जो है इज अ कंप्लीट एंग्री मैन, राइट? उन्होंने बोला मार दूं क्या? बोला नहीं। तो हमारे भक्ति के जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा डर जरूरी है, बहुत ज़्यादा डर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं, राइट? इतना डर हमें चाहिए जितना हम उनके पास जा सके डेली, मंथली 4 times, दैट इज ऑल वी आर वांटिंग। लेकिन एक बहुत सुंदर चीज़ है, हाँ, इसमें देखिए आप, सुग्रीव जो था 4 महीने में उसको समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत सुख में था, ऐश्वर्य में था। वेयर एज ऑपोजिट साइड यू सी राम, भगवान श्री राम, उनको समय ही नहीं निकल रहा था उनका। एक मोमेंट ऑफ हिज लाइफ वाज नॉट पासिंग बिकॉज ही वाज इन सेपरेशन ऑफ सीता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसे अगर हमारी वाइफ घर चली जाए, एक दिन मेरे से एक माता जी ने पूछा, माई वाइफ was not in town for 1.5 months and she was about to come. तो पूछा उन्होंने कि प्रभु जी, अब तो माता जी फाइनली इज कमिंग बैक, यू मस्ट बी हैप्पी ना? आपको बहुत मतलब टाइम लगा होगा ना ये समय निकालने में। तो मैंने बोला माता जी समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अगेन जस्ट टू ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस सो दैट यू आर अवेक ऑल द टाइम। मेरा तो विरह में था मैं एक्चुअली। और एक देखिए आप कि अयोध्या जो है वहाँ पे कोई फाइट नहीं होती है, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, देयर इज़ नो फाइट एट ऑल। जहाँ पे कुछ झगड़ा होता भी है तो वो किस लिए होता है कि ये अच्छा है, इससे और अच्छा क्या हो सकता है, सब अच्छा ही है लेकिन उससे क्या अच्छा हो सकता है। वेयर एज ऑपोजिट साइड देखिए आप लंका में, वहाँ पे भी कोई फाइट नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है अगर अभी कुछ बोला ना तो डायरेक्ट लंका से बाहर। विभीषण के साथ भी ऐसे ही किया रावण ने, एक बार मुंह खोला लंका से बाहर, बोले निकलो अब तो यहाँ से। तो वहाँ भी कोई फाइट नहीं होती है खास, क्योंकि सबको बहुत ही डर है वहाँ पे रावण का। और वहाँ के डिस्कशन कैसा होता है आप देखिए मंत्रीज और वहाँ के लोगों में। जो रावण की राज्यसभा है, अब देखिए आप किसी देश की, किसी राज्य की राज्यसभा में सारे मंत्रीगणों के, मंत्रिमंडल के साथ में क्या डिस्कशन हो रहा है आप देखिए। रावण के मंत्रीगण उनको बोल रहे हैं कि आप सीता माता के साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे, लेके क्यों आए थे आप इनको, राइट? जिस भी पर्पस के लिए लाए थे उनको यूटिलाइज तो करो आप, ऐसे बातें कर रहे हैं। अब देखिए मंत्री राजा को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, है ना? फिर उन्होंने मना किया एंड ऑल दैट इज डिफरेंट स्टोरी। और बीच में होते हैं हमारे कौन, किष्किंधावासी। वहां पे लोग कैसे होते हैं, वहां पे लोगों में फाइट होती है। फाइट किस लिए होती है कि मैं सही हूं तू गलत है, सामने वाली पार्टी बोलते मैं सही हूं तू गलत है। सो नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द साइड ऑफ द अदर पर्सन इन फ्रंट। हम भी कुछ इसी टाइप से हैं,
आपको इस क्लास खत्म होने के बाद समझ में आ जाएगा कि हम सुग्रीव और वाली जैसे ही हैं मोस्टली, और हम किष्किंधावासी हैं, राइट। हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना ही नहीं चाहते, उनको गलत मानना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब खराब। रामायण में 3 टाइप के वानर होते हैं। एक वानर वो होते हैं जो अयोध्यावासी होते हैं, हनुमान जैसे परफेक्ट, बहुत ही सुंदर चरित्रवान व्यक्ति, उनको क्लियर है कि जीवन में करना क्या है। उसके ऑपोजिट होते हैं हमारे वाली, लंकावासी टाइप, उनको भी क्लियर है क्या करने का है, मतलब बहुत खराब क्लियर है उनको सब कुछ। आप देखिए एक बार क्या हुआ था कि रावण को लगा कि इसके पास एक वरदान है जिसमें ये आदि शक्ति ले लेता है, अगर इसके सामने युद्ध करने गए तो कभी तो ये आएगा मेरे सामने और मेरी आदि शक्ति लेके लंका को पूरा विजय कर जाएगा, राइट। तो इसको मुझे मारना बहुत ज़रूरी है। तो उनको मारने के लिए वो एक बार जाते हैं एक जगह पे, वहाँ पे पहुँच के उनको वो पीछे से सोचते हैं कि पकड़ूंगा, पूछ पकड़ूंगा, ऐसे से घुमाऊंगा और खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल प्लान था रावण का, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे तो वाली ने क्या किया, उनकी पूंछ ने उनको पूरा रैप कर लिया और उनके सामने लाके प्रस्तुत कर दिया। तो उनको समझ में आया ये तो गलत सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं अब। तो इमीडिएटली स्मार्ट मैन चेंज्ड इमीडिएटली, ही सेड आई जस्ट केम टू मेक फ्रेंडशिप विद यू बाय द वे, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी। तो उन्होंने बोला अच्छा फ्रेंडशिप के लिए आए हो क्या, ओके। तो उन्होंने एक आग जलाई वहाँ पे लकड़ियों से, और फिर वहाँ पे 7 फेरे लिए उस आग के, दोस्ती की कस्में खाई उन्होंने सारी की सारी। और देखिए क्या कस्में खाई उन्होंने, बहुत ही सुंदर वाली, कि तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, तुम्हारी सेना मेरी सेना, तुम्हारा ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य, तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ, ये उनकी कस्में हैं। तो इस टाइप के वानर भी है जो लंका में वास करते हैं, उनको भी क्लियर है कि क्या चाहिए जीवन में। बैड एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। ऑपोजिट में है हमारे अयोध्यावासी जो बहुत ही सुंदर है, हनुमान जी जैसे, राइट, हमारे पीछे ये। और बीच में आते हैं हमारे सुग्रीव टाइप, कंफ्यूज्ड पीपल, है ना। करना क्या है लाइफ में ये कोई आइडिया ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। हनुमान जी के एसोसिएशन में आते हैं तो डिवोटी बन जाते हैं, और वाली जैसे लोगों के एसोसिएशन में आते हैं तो अभक्त बन जाते हैं, है ना। वानर जो है वो एक और रिप्रेजेंट करता है, वा नर, वा इज अ क्वेश्चन, नर मीन्स ह्यूमन, सो आर यू अ ह्यूमन is what Vanar means. So every Vanar every day asks himself in the mirror that am I a human? है ना? It's not about looking human. It's not about looking human, but it's about being human. टी-शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा being human की, है ना? रियल में ह्यूमन होना चाहिए। आपको सिखाया हमने ना कि what is the difference between animals and humans, सिखाया। तो you should remember this: eating, sleeping, mating and defending. These are the 4 activities which are common across humans as well as animals. And if you're doing only that much, then you are as good as sophisticated animal, right? So if you go beyond this and use your intelligence beyond these 4 activities which are common across animals and humans, then you are humans actually. Otherwise you are probably not. Okay? So remember this. Are we Vanars or not? We have to also ask this question to ourselves every day. Okay? So what is the aim of life? If you see the entire Ramayana, a bird's eye view where you see Ayodhya, Kishkinda and Lanka, people, grateful people, ungrateful people, and these are sometimes grateful and sometimes ungrateful, right? These are like Hanuman like people, Wali like people and Sugriv like people, right? तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? आप एक चीज़ बताइए मुझे। आप काफ़ी लोगों के घर में एक फ़ोटो लगी रहती है ना, अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर, जिसमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इन द फ्रंट एंड प्रॉब्ली पेरेंट्स एट द बैक साइड स्टैंडिंग एंड द लिटिल ग्रैंड चिल्ड्रंस आर सिटिंग एट द फ्लोर. Very nice background and ambience is amazing, lighting is amazing and wonderful big picture. We put it on our wall, right? What is the significance of that picture? Why do we have that picture? आप बता सकते हैं? आप चलिए ये बताइए कि हम कोई अपना चेस्ट का एक्सरे लगाता है क्या ऐसे पिक्चर बना के? कोई नहीं लगाता ना। है क्या गंदगी लगी, ऐसे लगेगा ना, सामने लगी रहेगी, कोई गेस्ट आएंगे तो क्या है बकवास लगाई आपने इधर। तो चेस्ट का एक्सरे जो है वो रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ महाभारत, जो हमारा एक्चुअल रियलिटी है अंदर का,
महाभारत है हमारे अंदर ना। और जो ये हम बहुत ही सुंदर सा फैमिली फोटोग्राफ लगाते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में रामायण को, अयोध्या को। हम इसलिए लगाते हैं वो पिक्चर हमारे घर में बिकॉज हमको पता है कि हम वैसे हैं नहीं जीवन में। घर में एक्चुअली में हम वैसा बिहेव नहीं करते आपस में ना, इतना सुंदर एलिगेंटली बिहेविंग, स्माइलिंग फेसेस ऑल द टाइम, टुगेदरनेस। आजकल फैमिली टाइम कैसा होता है? बेस्ट केस में फैमिली टाइम होता है कि सब अपने अपने मोबाइल में साथ में लग जाओ। यही है फैमिली टाइम मोटा मोटा। लेकिन फोटो में तो हमको ऐसे लग रहा है कि हम बहुत अलग है। तो वो जो फोटो है वो रिप्रेजेंट करती है अयोध्या को, रामायण को। और जो चेस्ट का एक्सरे होता है, जो रियल लाइफ हमारी डे टू डे लाइफ है, वो रिप्रेजेंट करती है महाभारत को। तो लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन महाभारत एंड अयोध्या। सो वेयर वी स्टार्ट इन महाभारत and we want to reach in Ramayana. We start from Lanka, we want to reach in Ayodhya, right? We behave like Ravan or Vali or at max Sugriv, but we want to behave like Hanumanji one day in a life, right? So रामायण का ये महत्व है हमारे जीवन में कि हमें ये दिखाता है कि actually में where you want to be in your life, where you're supposed to be. What you are today is महाभारत, द्वेष, क्रोध और बहुत गलत गलत दुर्योधन, दुशासन टाइप कैरेक्टर्स। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। एवरी डे इन अ लाइफ वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ फाइट गोइंग इन, राइट? समझ में आ रहा है आपको? सो वेयर वी वांट टू बी इन कमिंग years to come or whatever, I'm not fixing a timeline here. At least in future we want to be at Ayodhya, right? We want to behave like the characters of Ramayana. Is it not? So we'll keep that in mind, right? Are you all with me? So can we loudly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay? So far what we've discussed is section 1, where we discussed about the characters, the names of the characters that we can learn from. That was section 1. The section 2 was, we saw the overall bird's eye view, overall picture of Ramayana. The life is a journey that starts from Mahabharata and ends at Ramayana. Starts at Lanka, ends at Ayodhya. So I'm not going to ask you to raise your hands to say that where do you belong to, like Lanka or so Kishkinda and where. That you have to answer it to yourself later part of your life, okay? And understand that the target is same for all, which is Ramayana or Ayodhya, whatever you'd like to call, okay? So are you having good time so far? Yes, sir. I can't hear it loudly. Yes, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. So now we are going to move to the third part of this session, which is few sample stories. And I'm telling you, these stories are so wonderful that I feel so amazing to tell it and hear it as well. So one sample story I would like to start from the place where Sita, Ram and Lakshman ji were staying during that Vanvas, Panchvati ki Kutia. Right? Panchvati ki Kutia mein Mata Sita, you try to reach to the place called Panchvati right now. So we are sitting there, okay? Panchvati mein Mata Sita, Lakshman और Hanuman ji, Sita, Ram and Lakshman present है, okay? और उस समय पे प्रकट होते हैं वहाँ पे कौन? एक गोल्डन डियर। वो स्वर्ण मृग वहाँ पे प्रस्तुत होता है उनके सामने। और माता सीता जो है वो क्या हो जाती है? उस स्वर्ण मृग को देख के, गोल्डन डियर को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। और वो क्या बोलती है भगवान श्री राम एंड लक्ष्मण को? वो बोलती है कि कृपया करके आप ये गोल्डन डियर लेके आइए, हम इस कितना सुंदर ये गोल्डन डियर है, राइट? एंड वी वांट टू टेक इट बैक टू अयोध्या। सब लोग इसको देख के बहुत ही प्रसन्न होंगे, ये तो अयोध्या में होना चाहिए इतना सुंदर डियर, राइट? हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ समय आते हैं जब हमारे जीवन में कुछ गोल्डन डियर लाइक अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती है, ओके? लेकिन क्या हुआ आप देखिए, वो गोल्डन डियर जैसे ही माता सीता के जीवन में आया तो उनके जीवन से कौन चले गए? भगवान श्री राम उनके जीवन से चले गए, लक्ष्मण जी उनके जीवन से चले गए। तो हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार से गोल्डन डियर लाइक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जब हम अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन से अप्रकट हो जाते हैं, राइट?
गोल्डन डियर लाइक अपॉर्चुनिटीज कुछ भी हो सकती है। आप देखिए अपने जीवन में, मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मेरे ऑफिस के भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, वैसे मैं पूरे ऑफिस के एग्जाम्पल्स देता हूँ यहाँ पे। सो वी हैव 2 people फ्रॉम आवर ऑफिस, प्रशांत एंड शुभम, माय वंडरफुल फ्रेंड्स एंड वंडरफul colleagues as well. So today they have come all the way here to hear this katha. So I am giving office example only. So I got that wonderful golden deer like opportunity also a few months back, where I was getting an opportunity to work in UK. Probably I have not shared with you, right? So I was getting a job offer from UK, from a very renowned company with some good hefty salary package, but I did not accept it. आप बोलोगे क्या फुलिश हो प्रभु जी, ऐसे नहीं होता है, राइट? मेरे पास ऑलरेडी बहुत अद्भुत खजाना है यहाँ पे, आपको शायद नहीं पता होगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत धन है, वो भगवान का धन है, वो हमारे डिवोटीज का एसोसिएशन है और ये टेम्पल है, राइट? द वेरी फर्स्ट मोमेंट, द मोमेंट आई हर्ड दैट कि ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी इन यूके इन दिस प्लेस, आई वेंट टू गूगल, आई चेक्ड, आर देयर इस्कॉन टेम्पल्स नियर बाय? Are there very good big temples nearby? Because I need association of very profound devotees also, right? तो वहाँ पे नहीं थे। अब वहाँ पे नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे? मैं पैसा तो कमा लूँगा लेकिन मेरी भक्ति तो मैं पूरी गवा दूंगा, राइट? इतना जो धन हम अर्जित कर रहे हैं एवरी वीकेंड by the association of all of these great Vaishnavas, how will we get it there? Not possible. So I don't want to make that money by going to UK and lose all of this what I'm gaining here. So the moment I got that call, I understood probably this is that golden day like opportunity. So you have to be very careful. Otherwise you'll be out of this spirituality, but you will gain a lot in material world. Right? So आप भी देखिए अपने जीवन में कैसे वो गोल्डन ईयर लाइक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, राइट? बिकॉज वी नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बाय द वे वी टॉट यू is to be happy. And how can you have that everlasting, long-lasting happiness? Eternal happiness is by the association of devotees and by getting attracted towards Lord Himself. Right? The purpose is God for every one of us. And if something is taking us away from God, then we don't want it. Then probably this is a golden deer-like opportunity. So आपको अपने आप से जज करना है अपने जीवन में कैसे वो आपको गोल्डन deer-like opportunity लग रही है. तो अभी माता सीता ने बोला है तो जाना पड़ेगा, तो गए हमारे भगवान श्री राम भी आगे और लक्ष्मण को वहाँ पे रोक के गए कि इनका ध्यान रखो. तो वहाँ पे जब पहुँचे तो भगवान श्री राम को आवाज, मतलब वो जब फाइनली उन्होंने उनको तीर मारा और उसको मार दिया, तो वो कौन निकला? मारीच नाम का एक दानव, राइट, डेमन. फिर उसने क्या किया? उसने माता सीता को संदेश पहुंचाया. कैसे? हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, ऐसे करके माता भगवान श्री राम की आवाज में बोला, राइट? तो जैसे ही माता सीता ने वो आवाज सुनी तो वो बहुत ही व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई. शी वॉज कंप्लीटली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ लॉर्ड राम. आप देखिए ऐसे कभी होता है क्या कि मतलब कभी भी हम लोग जीवात्मा हैं हम, राइट? जीवात्मा कभी प्रॉब्लम में होती है तो क्या बोलती है? हे परमात्मा मुझे बचाओ, ऐसे करते हैं ना हम लोग. कभी परमात्मा ऐसे बोलते हैं क्या? हे जीवात्मा मुझे बचाओ, ऐसे कभी होता है क्या? तो लक्ष्मण ने जैसे ही ये बात सुनी कि वहां से राम भगवान बोल रहे हैं कि हे सीते, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो उन्होंने बोला ये तो कुछ गड़बड़ है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है ये तो. ऐसे बोल के उन्होंने लाइट लिया कि दिस इज काइंड ऑफ समथिंग इज रॉन्ग. बट नथिंग इज रॉन्ग विद गॉड हिमसेल्फ. ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. हाउ कैन समथिंग हैपन टू गॉड? दिस इज वेरी फनी. लेकिन माता सीता जो थी, अभी लक्ष्मण जो है वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन इन कंप्लीट नॉलेज. माता सीता जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? भक्ति देवी को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन शी वॉज कंसर्न अबाउट लॉर्ड राम, प्रोबेबली दैट इज वाई शी वॉज गेटिंग टेंस्ड, एंड शी वॉज आस्किंग लक्ष्मण टू गो एंड ट्राई टू सेव हिम. और लक्ष्मण ने बोला नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा. भगवान श्री राम ने बोला है यहाँ पे रुकने को, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ बोला है रुकने को, और आप बोल रहे हो जाओ. पॉसिबल ही नहीं है. तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा. बहुत ऐसे कॉन्वर्सेशन चला और फाइनली माता सीता ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जो उनको नहीं यूज करने चाहिए थे, और बोला कि शायद तुम मेरा भोग करना चाहते हो, मुझे अयोध्या लेके जाओगे, और ताकि भगवान श्री राम की मृत्यु हो जाए उसके बाद तुम मुझे ले जाओगे अपने उसके लिए.
तो आप देखिए, ये वही लक्ष्मण है जिन्होंने 13 साल पूरा अपने अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़ के, अपनी सुंदर पत्नी को, नवविवाहित पत्नी को छोड़ के आए थे। किसकी सेवा के लिए? भगवान श्री राम और सीता की सेवा के लिए। हर एक दिन वो उनकी सेवा में लगे रहते थे, सोते भी नहीं थे। हर एक दिन 13 साल वो एक दिन भी नहीं सोए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूँ एक दिन भी नहीं सोए तो रात को सोते थे आराम से। रात में भी नहीं सोते थे। रात में वो पहरेदारी करते थे और सुबह को दिन में उनकी सेवा करते थे। पूरे 14-13 साल एक एक मोमेंट वो सोए नहीं है। किनके लिए? सीता और राम के लिए। और उसी समय वो सीता माता उनको क्या बोल रही हैं कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो, इसलिए तुम माता भगवान श्री राम की रक्षा करने नहीं जा रहे हो। हमारे जीवन में भी ऐसा वाक्य आते हैं जब हमने बहुत कुछ किया रहता है हमारे फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑफिस कलीग्स एटसेट्रा, बॉस के लिए, कंपनी के लिए, और सामने वाली पार्टी बोलती है आपको, किया ही क्या है आपने, करा क्या है आपने हमारे लिए। आजकल के बच्चे बोलते हैं यहाँ पे, है ना, किया ही क्या है आपने हमारे लिए, ऐसे करके बोलते हैं ये वाला सेंटेंस। लास्ट टाइम मैंने आई वाज गिविंग दिस सेशन, ऐसे एक पेरेंट और वो बच्चे थे, आपस में उनका शुरू हो गया वो समझ गए, इन्होंने बोला है आपस में एक दूसरे को। बाद में आके बताया माता जी ने कि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स प्रभु जी, किया ही क्या है आपने हमारे लिए, इसी टोन में बोल रही थी वो भी मेरे लिए। तो दिस इज हाउ इट इज, है ना। कितना बुरा लगा होगा उस लक्ष्मण को, उन लक्ष्मण को जिन्होंने 13 साल उनके लिए पूरा सब कुछ गवा दिया, सब चीजों को। फाइनली उनको जाना पड़ा बिकॉज सीता माता मान नहीं रही थी, और वो गए। वहां पे पहुंचे और भगवान श्री राम ने उनको देख के आश्चर्यचकित हो गए। फिर बोला भाग के वापस आए इधर, और देखा तो सीता माता गायब। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है क्या, तुम्हें एक काम दिया था मैंने, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। अभी देखिए आप, ये वही राम है जिनकी 40 साल से वो पूरी की पूरी सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मण अयोध्या में भी सेवा की 25 साल, शादी के बाद 13 साल यहाँ पे भी सेवा करी। हर एक दिन सब कुछ किया, लेकिन मिला क्या सुनने के लिए? एक सीता माता है तो वो उनके कैरेक्टर पे ब्लेम कर रही हैं, क्वेश्चन उठा रही हैं, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम हैं तो वो उनके कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कॉम्पिटेंट ही नहीं हो और तुम कैरेक्टर लेस हो। अब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल के देखिए जब आपने किसी व्यक्ति के लिए 40 साल गवा दिए पूरी तरह से, और वो आपको ऐसे बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय पे? आप तो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे है ना। लक्ष्मण ने क्या किया वो हमें सीखना जरूरी है। लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों सिचुएशंस को हैंडल किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 30 सेकंड का पॉज लिया। जैसे ही माता सीता ने कुछ बोला और जैसे ही भगवान श्री राम ने कुछ बोला, उन्होंने 30 सेकंड का पॉज लिया उस टाइम इमीडिएटली। कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, है ना। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम ऐसी सिचुएशन में होता है तो हमें पॉज तो छोड़ो, हमें रिमोट कंट्रोल कहाँ होता है वही नहीं पता रहता है ना, ऐसे बोलोगे आप लोग। लेकिन नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली पॉज करना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। एंड सेकेंड थिंग, क्या किया लक्ष्मण जी ने, उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या जो सीता माता बोल रही है वो मानती है क्या, और क्या भगवान श्री राम जो रियल में बोल रहे हैं क्या ये सच में ऐसा सोचते हैं क्या? Does she or he really mean this, whatever he or she is speaking right now, है ना। क्या वो अभी अपनी व्याकुलता, चिंता के कारण तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि सच में ये ऐसा मानते हैं? और उनको क्वेश्चन का आंसर था नहीं, ये इनकी व्याकुलता है, ये इनकी चिंता है भगवान श्री राम के लिए और माता सीता के लिए आपस में, इसलिए शायद इन्होंने ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया है। Third thing that you all must do is, point number 1 is, do first thing, 30 second pause. take a pause for 30 seconds. Then what next? Ask this question to yourself, does she or he really mean this, or she is saying out of some concern or something, some tension she has got or he has got. And third thing that you all should try to remember, that you should think about the great things what that person has done in your life.
जो जो अद्भुत चीज़ें उन्होंने आपके जीवन में की हैं आज तक, उन सभी को आप याद कीजिए। तो वैसे ही भगवान श्री राम ने भी और माता सीता ने भी लक्ष्मण के लिए जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया था। पहली तो मिस्टेक की थी ना उन्होंने, तो उन्होंने उन मिस्टेक को छोड़ दिया और उसकी जगह पे उन्होंने वो सारे अच्छे अच्छे चीज़ें जो उन्होंने लाइफ में उनके लिए की थी उसके बारे में उन्होंने विचार करने का प्रयास किया। राइट? माता सीता ने स्वयं उनको माँ के समान माँ का प्यार दिया था। राइट? आफ्टर शी गॉट मैरिड। एंड भगवान श्री राम ने भी स्वयं उनको उनके भ्राता के समान भी प्यार दिया था, एज वेल एज पिता के समान भी प्यार दिया था। राइट? सो जो जो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होती है उस व्यक्ति के साथ में, उसको हमें सोचना चाहिए उस टाइम पे, और तभी हम क्या कर पाएंगे, वो 30 सेकेंड वाला पॉज लगा पाएंगे। थोड़ा इनिशियली क्या होगा, आप रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको डे 1, एंड डे 2 आपको क्या होगा, रिमोट कंट्रोल दिखेगा वहाँ पे पड़ा, उठा नहीं पाओगे आप पूरा बॉम्ब चला दोगे जब तक। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वन डे यू विल लिफ्ट द, बट पॉज भी नहीं कर पाओगे। एक दिन आप पॉज करोगे लेकिन आप थोड़ा लेट कर दोगे पॉज करने में, फिर आप थोड़ा करोगे पॉज 10 सेकंड का ही कर पाओगे, फिर 30 सेकंड का करोगे। धीरे धीरे करके प्रयास कर करके आप ये तीनों को आंसर कर दोगे। टेक अ पॉज फॉर 30 सेकंड, पॉइंट नंबर 1। देन आस्क दिस क्वेश्चन, डज दिस पर्सन रियली मीन दिस? थर्ड थिंग इज रिमेंबर ऑल द गुड टाइम्स दैट यू हैड विद दैट पर्सन। राइट? अच्छे अच्छे जीवन में जो भी वाक्य आपके उनके साथ में हुए हैं उसको आप स्मरण करने का प्रयास कीजिए, तभी आप उसको कुछ कह नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन जो होती है हमारे जीवन में मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। आपके अच्छे अच्छे संबंध पूरे ऐसे खत्म हो जाते हैं 2 मिनट में, और अगर आपने वहाँ पे पॉज किया तो देन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डज शी रियली मीन दिस? एंड देन थिंक अबाउट द ग्रेट थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। ओके? सेकेंड स्टोरी हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी आती है किष्किंधा कांड में। जब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे, दिस स्टोरी आई कीप टेलिंग इन डिवाइस ऑल्सो बट लिटिल बिट। सो किष्किंधा कांड में जब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो सर्च मिशन शुरू होता है फाइनली। ओके? तो 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हमारे सुग्रीव अपनी सेना को, और चारों दिशाओं में बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है और जाके माता सीता को खोज करके और वापस रिटर्न आओ, नहीं तो मार दिए जाओगे जब वापस आओगे जब भी। तो हम फोकस करेंगे उस ग्रुप के ऊपर जो जाता है दक्षिण दिशा में। उस दक्षिण दिशा के ग्रुप के लीडर थे अंगद, और उसमें थे हमारे हनुमान जी और नल और नील, ये 4 लोग, और जामन जी। 5 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे और बाकी सारी वानर सेना थी उनके साथ में। और वो निकलते हैं सर्च मिशन पे। क्या कर सर्च करने जा रहे थे? माता सीता की खोज में जा रहे थे। माता सीता क्या रिप्रेजेंट करती है? भक्ति देवी को। अभी आप लोग क्या सर्च करने आ रहे हो यहाँ पे? भक्ति लेने आए हो ना यहाँ पे आप। भक्ति में आपको प्रगति चाहिए अपनी, यानी आप सीता माता की खोज में निकले हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वानर सेना हो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ओके? सो ऐसे जब वो निकले माता सीता की खोज में, भक्ति देवी की खोज में, तो हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे हम किसी मिशन पे निकलते हैं, जस्ट लाइक दीज वानर सेना। और हम भक्ति में प्रगति करने के लिए भी अभी आध्यात्मिक जीवन की हमने शुरुआत की है, तो हम भी भक्ति की ही खोज में आगे निकले। राइट? तो ये जो ग्रुप था वो स्टार्टिंग में बहुत उत्साह था उसमें, बहुत ग्रुप में पूरा अंगद, एक एक पहाड़, एक एक नदी, और क्या गुफा हो, पर्वत हो, हर जगह पे, हर एक जंगल के हर एक पेड़ पे कूद कूद के माता सीता की खोज कर रहे थे बहुत ही सुंदर तरीके से, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ उत्साह, एंथुसियाज्म। राइट? ऐसे ही हमारा भी जीवन होता है भक्ति में। मोर आई वांट टू चैंट मोर एंड मोर नेम्स ऑफ लॉर्ड, डू मोर सेवा। तो जी और बताओ क्या लेक्चर सुनना है हमको। बहुत ही उत्साह होता है स्टार्टिंग में जब हम भक्ति के जीवन में आते हैं, और कोई भी टास्क हम स्टार्ट करते हैं अपने मटेरियल वर्ल्ड में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ नया नया पाइथन सीखेंगे हम आज, चलो चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। स्टार्टिंग में बहुत उत्साह रहता है हमारे अंदर भी। वैसा ही उत्साह कुछ जो था वो इस ग्रुप में भी था, अंगद के द्वारा जो ग्रुप लीड किया जा रहा था। ओके? और धीरे धीरे ये उत्साह जो होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि भक्ति देवी तो मिल ही नहीं रही थी उनको। अभी सीता माता की खोज में निकले और सीता माता मिल ही नहीं रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते महीना बीतता जा रहा है और उनको सीता देवी के दर्शन ही नहीं हो पा रहे। वैसे ही हमारे अंदर भी होता है कि हमारे अंदर वो भाव आ ही नहीं रहे। हम चाहते हैं उस भाव को लेके आना, और धीरे धीरे हम बहुत उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, और फिर वो भाव आता नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे, तो जो वानर सेना होती है वो पहुंच जाती है फॉरेस्ट ऑफ डाउट्स पे। एक फॉरेस्ट है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ डाउट्स वाल्मीकि जी रामायण में।
फॉरेस्ट ऑफ डाउट्स में जैसे ही वो वानर सेना पहुंचती है तो वो बोलती है कि अरे हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन में, मतलब भक्ति देवी सीता माता होती भी है कि नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हो आपस में। वैसे ही हम भी क्या करते हैं कुछ समय के पश्चात, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद, कि अरे भक्ति होती भी है कि नहीं होती है, कुछ मतलब कुछ टेस्ट प्रभु जी ने जो बताया वो आ तो नहीं रहा है। ऐसे हम अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा क्वेश्चन अपने आप से करते हैं तो अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए हमें कि वी आर राइट नाउ इन द स्टेज ऑफ, वी आर एट अ प्लेस वेयर वी आर इन द फॉरेस्ट ऑफ डाउट्स, वी विल क्वेश्चन आवरसेल्फ। लेकिन यदि अगर वो वहीं पे रुक जाते वानर सेना, तो क्या उनको सीता माता की प्राप्ति हो पाती? नहीं हो पाती ना। और वो आगे बढ़े उत्साह को मेंटेन करते हुए, तभी तो वो सीता माता की खोज कर पाए। तो उसी प्रकार जब हमें डाउट्स आता है अपने भक्ति जीवन में या किसी भी एक्टिविटी में, तो हमें थोड़ा सा और पुश करना होता है, तो हमारा वो टास्क सक्सेसफुल हो जाता है। परसिवरेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में अपन। आप देखिए कभी जब आप इस दीवार पे, करना नहीं है लेकिन अपने को, ऐसे एक स्क्रू डालेंगे ना, स्क्रू ड्राइवर से ऐसे स्क्रू को टाइट करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा पता है आपको? ऐसे प्रेम से चला जाएगा, हाथ से ही, धीरे 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 हाथ से ही हो जाएगा। लेकिन लास्ट के 2-3 थ्रेड्स जो होंगे ना, वो बहुत मेहनत लगती है, ऐसे बहुत टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके टाइट होता है। वैसे ही भक्ति में भी होता है और किसी भी कार्य में होता है। स्टार्टिंग में तो स्मूथ ऐसे मक्खन की तरह, वाह प्रभु जी मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी से प्रेम की प्राप्ति हो रही है, भगवत दर्शन हो रहे हैं हमको। तो चैंटिंग में क्या कृपा है, वो भगवान की कृपा रहती है स्टार्टिंग में। तो भगवान कृपा निकाल देते हैं, बोलते हैं प्रयास करो तो देता हूँ कृपा। तो उस टाइम पे वो लास्ट के स्क्रू जो है हमको वो टाइट करने पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा, वानरों की तरह हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हमें जीवन में सीता माता की प्राप्ति हो पाएगी और उनके दर्शन हो पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो अंगद जो है इस वाक्य में रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धि को। ये वाला स्टोरी मैंने बताया रहेगा शायद, लेकिन आई विल टेल यू इन डिटेल्स टुडे। अंगद जो है वो सबसे आगे थे, लीड कर रहे थे उस सेना को, और सबसे लास्ट में उन्होंने रखा था हनुमान जी को। और अंगद रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धि को और हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं विश्वास को। तो जब भी हम कुछ नया कार्य स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई भी एक एवेन्यू में हम जाके नया कुछ कर रहे हैं, वो चाहे हमारा मटेरियल लेवल पे हो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे हो, आध्यात्मिक कुछ हमने नया स्टार्ट किया, जैसे आप में से काफी नए लोगों ने स्टार्ट किया लास्ट फ्यू वीक्स। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को आगे रखना चाहिए और अपने विश्वास को पीछे रखना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप तो बहुत फॉर्चुनेट है, दे सिटिंग इन इस्कॉन, वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बोनाफाइड वंडरफुल पीपल, है ना। कोई आपके साथ धोखा नहीं करेगा, जो भी है वो सामने आपको बोल देंगे, है ना। तो आप तो सही जगह पे बैठे हैं, लेकिन बाई चांस आप गलत जगह बैठे होते तो क्या होता? तो वो कैसे देते लेक्चर कि बाबा जी विल टेल यू जस्ट लिसन, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, ओके। विश्वास करो हमारी बातों पे बाबा, मतलब बच्चा, ऐसे चलता है ना। आप सिर्फ विश्वास कीजिए भगवान पे, हमारे वाक्यों पे विश्वास कीजिए। ऐसे करते तभी तो हमारे इतने सारे बाबा जी क्रिएट हो जाते हैं, जो अभी अनफॉर्चुनेटली सही नहीं कर रहे अपने लाइफ में, राइट, जेल में है कुछ। वो क्यों हुए? क्योंकि उनकी ऑडियंस जो थी वो अपने हनुमान जी अर्थात अपने विश्वास को आगे लेके घूमते थे और अपने अंगद को पीछे लेके रखते थे, बुद्धि को पीछे रखते थे। क्वेश्चन ही नहीं पूछा कभी, व्हाई दिस, गिव मी सम रेफरेंस, वेयर यू आर टॉकिंग दिस फ्रॉम, नॉट फ्रॉम योर हेड, आई वांट फ्रॉम सम बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स। They did not ask this question, right? क्वेश्चन ही नहीं किया। तो हमें क्या करना होता है स्टार्टिंग में? अपने अंगद को आगे कार्य करते हैं ताकि हमारे साथ धोखा ना हो, हमें कोई एक्सप्लॉइट ना कर जाए, कोई हमें यूज ना कर जाए, राइट। और उत्साह को पीछे विश्वास को पीछे रखना होता है। और यही विश्वास जब हम पीछे रखते हैं, हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान है वो, राइट। और पवन पुत्र हनुमान का एक और फायदा है, जब हवा पीछे से आती है ना तो ऐसे पुश कर देती है, और जब हवा सामने से आने लगे तो वो आपको रोकती है। तो आपको पता नहीं रहता है, विश्वास आपको पीछे से पुश कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? विश्वास का ये खासियत है कि पीछे से आपको पुश कर रहा होता है कई चीजों के लिए, है ना। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पुश करता है आगे मूव करने के लिए अपने लाइफ में, कुछ चीजों को अचीव करने के लिए। तो वो विश्वास पीछे रखिए स्टार्टिंग में, ओके।
सो एक तो हमें विश्वास को पीछे रखना है बिकॉज वो हेल्प भी करता है पुश करने में, और बुद्धि को आगे रखना है, इससे हम एक्सप्लॉइट भी नहीं होते किसी के द्वारा। वैसे ही उन्होंने भी अंगद को आगे रखा था और बुद्धि को पीछे रखा था, और बढ़िया उत्साह के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे थे माता सीता की खोज में, और फाइनली वो एक पर्वत पे पहुंचते हैं, जिस पर्वत पे एक बहुत ही घनघोर अंधेरे वाली एक गुफा में उनको सामना होता है उनका। अब उनको उस गुफा में एंट्री करनी होती है, और गुफा में एंट्री करने से पहले अंगद क्या बोलता है कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा भैया इसके अंदर। अब तो बोलते हैं क्यों? मैंने बोला ना बस मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि गुफा से उनका पुराना नाता भी था, आपको याद रहेगा। वाली जो थे वो गुफा में जाके सब खराब हो गया था उसके बाद। आई एम कटिंग इट शॉर्ट, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दैट। सो गुफा में मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो आप देखिए हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आता है, परिस्थितियां आती है जब हमारे जीवन में वो समस्याओं का हल हमारी बुद्धि नहीं दे पाती है। समझ रहे हैं आप? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे आपके इंटेलिजेंस को यूज करके, आपके बुद्धि का यूज करके। उस समय पे आपको क्या करना होता है? जो वानर सेना ने किया, उन्होंने हनुमान को आगे लेके आए, विश्वास को आगे लेके आए। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में विश्वास को आगे लेके आना होता है, और फिर आपको उस समस्याओं के हल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी मत करना विश्वास को आगे लाने का, 6-8 महीना थोड़ा रखो पीछे, नहीं तो यूज हो जाता है मामला। लेकिन आपका तो अच्छा सिचुएशन है इस्कॉन में आप, राइट? फिर भी तो स्टार्टिंग में हमको क्वेश्चंस पूछने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? करेंगे ना आप ऐसा, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, सो जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आगे लेके आए, तो हनुमान जी ने क्या किया आप ये देखिए। उन्होंने बोला कि मुझे भगवान श्री राम पे पूरा प्रगाढ़ विश्वास है, मेरे को उनका बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी कृपा है मेरे ऊपर। मैं इस गुफा में तो क्या, आप जो बोलो वो करने को तैयार हूं, बस एक नाम लूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उन्होंने बोला बस मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा और मैं डायरेक्ट अंदर घुस जाऊंगा, आपको आना है तो आइए मेरे साथ में, राइट? तो जब ये सारी वानर सेना इंक्लूडिंग हनुमान जी जब निकले थे स्टार्टिंग में मिशन, सर्च मिशन शुरू करने से पहले, तो सब किन से मिलके गए थे? भगवान श्री राम से मिलके गए थे, और उस समय उन्होंने सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था भगवान श्री राम का। और लेकिन जैसे ही हनुमान जी उनके सामने आए, तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ उनके सर पे ऐसे रख दिए, और उस समय पे हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे थे, अपने अंदर उसको पूरी तरह से ग्रहण कर रहे थे, ठीक है? तो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे एवर सिंस मोमेंट्स आते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज प्रस्तुत हो जाती है जो हमको बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ तो गाइडेंस दे देती है, कुछ तो मार्ग दिखा देती है। लेकिन क्या वो एवर सिंस मोमेंट पे हम कुछ करेंगे अगर आगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा नहीं। तो आशीर्वाद तो बहुत मिलते रहते हैं, जैसे वानर सेना को सबको मिला था, लेकिन सिर्फ हनुमान जी उस आशीर्वाद को कैरी कर पाए थे अपने साथ में। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली गेटिंग ब्लेसिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ डू hold on to these blessings, those blessing full of blessing moments, ever since moments in your life. जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्जाम्पल, when I met His Grace Shubh Vilas Prabhu a few years back, so that was my ever since moment. After that I love Ramayana, I don't know why, and that has been an ever since moment for me, and I'm speaking on it nowadays, see, and I'm feeling so wonderful, blissful inside while speaking on Ramayana. He taught me all this, what I'm speaking today. So I am trying to catch hold of that blessing that He has given me. Similarly, we keep meeting. Yesterday we met Amrinder Prabhuji. But I don't know how much blessing we'll be able to hold it. He's such a great personality. But people come in our life and go. But how much can we carry their blessings within us for such a long period of time will define us, whether we are General Vanar or we are Hanuman ji. तो उन्होंने भी भगवान श्री राम का पूरा विश्वास और जो आशीर्वाद था अपने साथ में ग्रहण करके बोला कि मैं जाने को तैयार हूं अंदर। तो उस समय पे बाकी वानर सेना ने क्या किया, बहुत ही ब्यूटीफुल, सी व्हाट दे हैव डन। जो सामने वाले वानर थे, जो सबसे आगे थे, उन्होंने पकड़ी हमारे हनुमान जी की पूंछ, पीछे वाले वानर ने उस वानर की, दूसरे वानर ने एक वानर की, ऐसे करके 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 पूरी चेन ऑफ, इसको बोलते गुरु शिष्य परंपरा। आपके जीवन में अगर आपको स्वयं विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर इतना,
आप बोल सकते हैं ना प्रभु जी हमारे पास तो इतना विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर कि हम उस केव लाइक गुफा में घुस जाए, है ना, तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, अगर हमें स्वयं पे ऊपर इतना विश्वास नहीं है तो हमें ऐसा व्यक्ति तो हम अपने जीवन में ला सकते हैं जिसको भगवान पे बहुत विश्वास है। वो हमारे श्रील प्रभुपाद है, उनके शिष्य हैं और बहुत सारे सन्यासी है, ब्रह्मचारी है जिनको भगवान पे बहुत स्वयं विश्वास है। तो हम उनकी धोती नामक पूछ को पकड़ सकते हैं, उनके गाइडेंस को पकड़ सकते हैं। wherever we are not able to get answers through our intelligence directly, is it not? And those people will take us through that gufa as well, through that dark pitch cave. Okay, so what you learn from this story is that when we start for anything new, जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह ड्राई अप होता जाता है और वो खत्म हो जाता है। अगर वो हमने आगे पुश नहीं किया, जैसे हम वो 2 थ्रेड पेच के स्क्रू के कसते नहीं है तो हमारा वो स्क्रू कभी टाइट नहीं होगा। वैसे ही हमको थोड़ा पुश करना होता है लास्ट टाइम में, राइट? हमें सक्सेस मिलेगी भक्ति मार्ग पे। भक्ति देवी सीता माता की प्राप्ति हमें भी होगी जिस प्रकार वानरों को हुई थी, राइट? उसके बाद हमें हमेशा हमारी बुद्धि को आगे रखना है, विश्वास को पीछे रखना है, क्योंकि ना तो आप एक्सप्लॉइट होगे किसी से और विश्वास जो है वो पीछे से आपको पुश भी करता रहता है। और फिर कुछ समय में जब आप बुद्धि से आंसर नहीं निकाल पाओगे, उस समय पे आपको विश्वास को आगे लेके आना है। और जो हनुमान जी ब्लेसिंग्स को अपने साथ में रख पाए इतने समय के लिए, वैसे हमें भी जब हमारे जीवन में कुछ एवर सिंस मोमेंट्स आते हैं तो हमें वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट ब्लेसिंग्स एंड कीप इट विद इन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so that we can separate from a regular crowd of Vanar and become Hanuman. Not literally become Hanuman, but behave like Hanuman ji Maharaj, right? And then we'll be able to cross over this cave as well. Cave is a problem in our life. Okay? So this was my second story. Third story I'll tell you since we have time. अभी वो अंदर घुसे, right? तो अंदर उनको एक स्वयं प्रभा नाम से एक देवी मिली, ओके, स्वयं प्रभा। और उन्होंने जैसे ही वो आए तो उन्होंने बोला उनको कि आप बहुत थक गए हैं। उनको सब पता था उनके बारे में, मतलब शी हैड सम पावर्स, सो शी न्यू एवरीथिंग अबाउट देम। सो शी सेड कि आप लोग बहुत थक गए हैं, आप बहुत टाइम से सीता माता की खोज में निकले हैं, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आपको कुछ फीस्ट खिलाती हूँ, है ना? तो उन्होंने बोला कि ठीक है खिलाओ, अभी वानर है, कुछ खिलाओगे तो खाएंगे ही। तो उन्होंने बोला खिलाओ खिलाओ। तो बहुत ही सुंदर, थके हुए थे बहुत टाइम से, बहुत सुंदर उनको बहुत ही बढ़िया भोजन प्रस्तुत किया गया उनके सामने। बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्रूट्स वगैरह प्रस्तुत किए गए और वो उसमें खाने में आनंद लेने लगे। और इतना आनंद लेने लगे कि उन्होंने बोलना शुरू किया कि बस बहुत हो गया, हमको कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं पे रहेंगे। राइट? तो भक्ति के जीवन में भी कुछ ऐसा होता है, या फिर आपके बाहर के कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ टारगेट लेके निकलते हैं और बीच में हमको कुछ ऐसी कंफर्ट जोन मिल जाता है जहाँ पे हमको बहुत ही ऐश्वर्य, बहुत ही सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती है और हम अपने जो टारगेट होता है उसी को भूल जाते हैं और बोलते बस बहुत मजा आ रहा है प्रभु जी, जस्ट कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, है ना? जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में, मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है ना? कुछ लोगों को इतनी सुविधा मिल जाती है कॉर्पोरेट लाइफ में कि वो अपने करियर के बारे में सोचते ही नहीं है कि यहाँ से निकलना जरूरी है, एक डिस्कम्फर्ट से में आना जरूरी है, तभी जाके आप कुछ डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जो हमको कंफर्ट लगता है उस टाइम पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक्चुअली में हमारे लिए डिस्कम्फर्ट होता है। तो वैसे ही वो वानर को भी क्या किया, वो तो भगवान हनुमान जी महाराज के साथ में थे, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमको रिमाइंड करते हैं, कम ऑन, यू आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, सो यू मस्ट हैव दोज पीपल इन योर लाइफ। ऐसे कुछ हनुमान जी जैसे लोग साथ में रहेंगे ना, तो आपको वो याद दिलाएंगे बार बार, नहीं तो आप तो बढ़िया रम जाओगे उसी में और चलती रहेगी आपकी कहानी नैया ऐसे ही, है ना? तो फिर वो उनको बोलती है स्वयं प्रभा कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, लंका में माता सीता, मैं आपको डायरेक्ट माता सीता तक पहुंचा देती हूँ। सिर्फ आपको, आप सब एक काम कीजिए, बस अपनी आंखों को मूंद लीजिए और बंद कर दीजिए, खोलना मत। आपको मैं डायरेक्ट सीता माता तक पहुंचाऊंगी, अगर किसी ने भी बीच में खोल ली तो वहीं पे प्रकट हो जाओगे, वहीं पे रुक जाओगे जहां पे है, राइट? मैं आपको हवा की गति से डायरेक्ट सीता माता तक पहुंचा दूंगी। तो सब ने एज एक्सपेक्टेड, सब ने अपनी आंखों को बंद किया और सब ऐसे हवा की गति से फील हो रहा था उनको कहीं तो जा रहे हैं हम, राइट? लेकिन है तो वानर ही,
अभी अब वानर को बोलो कि एक जगह बैठ जा तो वो कैसे बैठेगा? नॉट पॉसिबल, राइट? उसको आंख बंद करके बोलो तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से काफी वानरों ने आंखें खोल दी तो सब लोग वहीं पे रुक गए और वो पहुंच गए हमारे समुद्र तट पे, जहां से हम रामेश्वर जाते हैं, रामेश्वर के तट पे। तो सब लोग वहां पे पहुंच गए। तो इससे हम क्या सीखते हैं, देखिए आप, देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव फेथ। अभी कोई ये भी बोल सकता है कि हनुमान जी ने तो नहीं बंद रखी खोली होगी ना, वो तो इतने अद्भुत है, अयोध्यावासी, परफेक्ट, क्लियर है उनको सब कुछ, वो तो पक्का बंद रखा होगा उन्होंने, तो फिर वो क्यों नहीं पहुंच गए एटलीस्ट? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव फेथ, जो टीम वर्क होता है ना, टीम में सबका साथ में जाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी टीम में कुछ लोग वीक हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपका वीक ही आने वाला है ना? जैसे हम डेली एवरी वीक हम यहाँ पे आते हैं तो हम बहुत डिवोटीज को लेके आते हैं अपनी गाड़ी में, हर डिवोटी ऐसे ही करता है। तो मेरा प्लान होता है यहाँ पे 10 o'clock पहुँचने का, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और 10:30 स्टार्ट करूँगा, ऐसे प्लान होता है। तो मैं सबको बोल देता हूँ 9 o'clock आई विल बी देयर एट योर हाउस, 9:30 एट योर, सो दैट वी कैन रीच ऑन टाइम एट 10। लेकिन मेरे घर में ही 3 लोग हैं हम, उनका भी तो टाइम पे निकलना जरूरी है, तो वो लेट कर देते हैं। कोई भी एक लेट किया तो मेरा सब बर्बाद हो गया प्लान। सो इट्स कॉल्ड कलेक्टिव फेथ, इट्स कॉल्ड collectively we have to work together. Even if I am ready by 8 o'clock, it doesn't matter. Even my kid has to be ready. So similarly हमारी कॉर्पोरेट लाइफ हो या फिर जीवन में कहीं भी हो, या फिर हम आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यहाँ पे जो आते हैं और अलग अलग कार्यकलाप करते हैं, तो हम जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं कि हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, तो हमारी सारी टीम को साथ में लेके चलना हमें बहुत जरूरी है, राइट? अगर हमारी टीम में कोई भी एक व्यक्ति ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आने वाला है, राइट? हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब टीम वर्क कैसे करके हमको चलना है। सो इट्स कॉल्ड कलेक्टिव फेथ। सो कलेक्टिवली वी हैव टू बी राइट, नॉट जस्ट वन पर्सन कैन बी परफेक्ट एंड वी विल ऑल गेट ऑल द रिजल्ट। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट, ओके? सो वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? अभी कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? कहाँ पे बैठे हैं अभी हम लोग? रामेश्वरम। हमने शुरू करवाया था आपको पंचवटी की कुटिया से। देखिए, हम कोई फीस भी नहीं चार्ज करें, कितना ट्रैवल करा दिया आपको सो क्विकली। और आपको बता रहा हूँ, आप सच में जाएंगे ना, डिवोटीज के साथ में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फॉर श्योर। अदरवाइज आपको अभी फील भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर आप ढंग से सुन रहे हैं तो वो अभी कहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग? रामेश्वरम पे। वहां पे फाइनली वो जब पहुंच जाते हैं और उनको सीता माता का कुछ पता नहीं रहता है, तो वो वानर, मतलब अभी 1 महीना कंप्लीट होने वाला है और वहां पे जाएंगे तो वो हमको मार देंगे, सुग्रीव महाराज हमारे। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पे मतलब व्रत रख लेते हैं जब तक हम फास्टिंग टिल डेथ। तो बोले करेंगे क्या फिर बैठे बैठे? तो बोले चलो राम कथा करते हैं, राइट? तो वो राम कथा शुरू करते हैं और राम कथा में कहीं तो जटायु का वर्णन आता है और उसी समय वहां पे उनके भाई संपाति बैठे होते हैं और उनकी सुन रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कब ये लोग मरे तो मैं इनको खा जाऊंगा सबको। तो जैसे ही संपाति को जटायु के बारे में समझ में आता है कि कुछ तो बोल रहे हैं मेरे भाई के लिए, तो वो आते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या बोला आपने? तो उनको समझ में आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये लोग अच्छे लोग हैं, है ना, भगवान श्री राम और जटायु से कनेक्टेड है। तो फिर वो बोलते हैं मैं आपको हेल्प करता हूँ, मेरी जो ये दूरदृष्टि है इससे मैं देख के बताता हूँ आपको कि लंका में यहाँ पे माता सीता बैठी है, तो आप डायरेक्टली लंका जा सकते हो। उनको बता दिया उन्होंने, कट शॉट। तो अभी मैंने आपको जटायु बोला, राइट? जटायु, हाँ करेक्ट। सो संपाति ने उनको बता दिया कि लंका में सीता माता प्रेजेंट है, सो आप वहां पे जाइए। तो अब बात आई कि जाएं कैसे हम? तो हमारे जो जामवन थे उन्होंने बोला, सिंस ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप एंड ही वॉज वेरी सीनियर ऑल्सो, तो उन्होंने सबसे पूछा, सभी वानरों से, कि तुम कितना जंप लगा सकते हो। उस समय पे 800 मील की दूरी थी, अभी वो प्लेट्स वगैरह हिल जाती है ना अपनी, पता रहेगा आपको, उस हिसाब से अभी कम दूरी हो गई, लेकिन उस समय पे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 800 मील की दूरी थी। तो 800 मील की छलांग कौन लगा सकता है? तो हर एक वानर बता रहा था कि मैं 20 मील की लगा सकता हूँ। दूसरे वानर ने बोला मैं 40, किसी ने बोला 200, किसी ने बोला 400। तो अंगद आए, उन्होंने बोला कि मैं 800 मील की छलांग लगा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो वी गॉट इट, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, वी गॉट द राइट कैंडिडेट ऑलरेडी, राइट? तो बोला लेट्स डू इट देन। तो बोला लेकिन जाऊंगा नहीं क्या है, हर बार जाऊंगा नहीं, गुफा में भी जाऊंगा नहीं और अभी यहाँ पे मैं छलांग नहीं लगाऊंगा, चल क्या रहा है आपका?
तो उनसे पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन हमारे जामन जी जो थे वो समझ गए कि ये क्यों नहीं जा पाएगा। क्योंकि अभी किसी को जैसे कोई भक्ति में मतलब कोई जो चाहता है कि मैं अच्छे से प्रगति करूँ आध्यात्मिक जीवन में, तो वो बोलेगा ना कि मुझे भक्तों के संग में रहना है बस। तो उसको बोले कि आपको वेगस भेजे क्या, लास वेगस, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं रहना, क्या पता भटक जाऊँ तो वैसे ही कुछ अंगद भी थे, उनको भी पता था आखिर मैं हूँ तो वाली पुत्र, ऐश्वर्य जैसे ही मुझे दिखेगा तो कहीं मैं बह ना जाऊँ उसमें। और लंका वॉज फुल ऑफ ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैं छलांग तो लगा सकता हूँ लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा वहां से, वहीं ना बस जाऊं मैं जाके, राइट। तो उन्होंने बोला मेरा नहीं हो पाएगा। तो एक वानर थे जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं था, वो थे हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज। उन्होंने बोला, उनसे पूछा कि ये क्यों नहीं बता रहे कि ये कितना छलांग लगा सकते हैं। तो जामन जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं बता रहे हो कि कितना छलांग लगा सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन ही गलत है। बोला अरे ये क्या, ये क्वेश्चन गलत है मतलब। बोलते हैं कि मैं अपने आप को भगवान श्री राम के हाथ में धनुष में, भगवान श्री राम के धनुष में एक तीर के समान समझता हूं। अभी तीर के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है कि कितना दूर जाएगा, वो जो छोड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और मैं तो भगवान श्री राम के धनुष का तीर हूं, और भगवान श्री राम अगर कोई तीर चलाएंगे तो ये 800 मील क्या, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को पार कर जाऊंगा। तो मैं तो कितनी भी बड़ी छलांग लगा सकता हूँ, इसलिए आपका क्वेश्चन ही गलत था। तो बोलते अच्छा ऐसा है क्या, नाइस, तो तुम सही कैंडिडेट हो बिल्कुल। तो उनको फिर जामन जी ने, सिंस उनको एक वरदान भी था और शाप भी था, उनको वरदान ये था कि उनके पास बहुत शक्तियां आ गई थी बचपन में, और शाप ये था कि उनको भुला दिया गया था सब कुछ। लेकिन उसके साथ में ये भी कंडीशन थी कि आपको कोई याद दिलाएगा सही समय पे तो आपको स्वयं वापस याद आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी एग्जाम्पल मैं ऑलवेज मेरे ऑफिस में कोट करता रहता हूँ कि यू ऑल शुड बी लाइक हनुमान। हनुमान जी के पास शक्तियां सारी थी लेकिन कभी यूज नहीं करी उन्होंने, भगवान की सेवा में ही सिर्फ लगाई। तो आपके अंदर भी कॉर्पोरेट लाइफ में जो जो हमको टैक्टिक्स चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती है, चाहे वो आपको थोड़ी सुनने में बुरी भी लगे एक बार के लिए, मैनेजरियल और लीडरशिप और वॉट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज, यू शुड हैव ऑल ऑफ दिस, बट डोंट यूज इट as long as it is not very much required. Like अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है आपके साथ, तो you should have that second phase also, है ना। तो people should know that you are both. 99% of the time I'm so humble, but 1% if you use me, you don't know what am I. ऐसा आपको पता रहना चाहिए सामने वाली पार्टी को, बस उतना ही एक भय रहना चाहिए उनके अंदर, तो वो आपको कभी ट्रिगर ही नहीं करेंगे और आपका यूज भी नहीं होगा। सो वैसा हमें बनना है अपने जीवन में, हनुमान जी जैसा। उस समय पे वानर सेना ने, जामवन जी ने स्पेशली हनुमान जी को याद दिलाने का प्रयास किया कि हे हनुमान, तुम वही हनुमान हो, याद करो अपनी वो बचपन के दिन जब आपने स्वयं सूर्य को भी ग्रहण कर लिया था अपने मुंह में। आपके अंदर अपार शक्तियां, ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने याद कराना स्टार्ट किया और उनको याद भी आने लगा धीरे धीरे। और जय श्री राम करके वो एकदम से इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया उन्होंने। और वो वहीं पे एक दूसरा पर्वत भी था, उससे भी बड़े पर्वत के समान उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया और सारी शक्तियां उनको वापस से याद आ गई। और उन्होंने एक जंप लगाया बहुत भयंकर तरीके से और जाके उस पर्वत पे जाके खड़े हो गए और वो छलांग लगाने के लिए तैयार थे 800 मील की। उस समय पे आप देखिए, आप ही में से जैसे हम डिवाइस देते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं आगे जाके 2-3 साल बाद बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं भक्ति में, राइट। आप ही में से कुछ एक व्यक्ति उठ के इतना ज्यादा प्रगति कर जाए आध्यात्मिक जीवन में और ऐश्वर्य की प्राप्ति करे, फेम प्राप्त करे, बहुत कुछ प्राप्त कर जाए, तो आप कैसा बिहेव करेंगे उस समय पे? क्या आप बोलेंगे कि हाँ प्रभु जी वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, प्रभु जी कंटिन्यू, वेरी गुड, आई एम लाइक योर फैन नाउ, ऑल्दो यू स्टार्टेड विद मी, वी स्टार्टेड टुगेदर, हमने साथ में ही शुरुआत की थी, लेकिन अभी आप बहुत प्रगत भक्त बन गए हो, क्या हम ऐसे उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे? वानरों ने किया था, वानरों ने बोला उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा ऐसे करके चिल्लाए वो, और भी बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप और बड़े हो जाओ और छलांग लगाओ। माता सीता की खोज करके आप अकेले जा रहे हैं, कोई टास्क है तो अपने ऑफिस में कैसे रहता है कि हम साथ में करेंगे, भले ही कुछ काम किया नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं रहूंगा साथ में, ऐसे होता है ना। मेरा भी तो नाम लिखो प्लीज, है ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है ऐसे।
हम बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा भी लिख देंगे और तुम्हें भी पता है तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा भी गोल है ना। वो फीलिंग और खराब रहती है सामने वाले के लिए। हाँ, हम वानरों से भी गिरे हुए हैं कि हम अपने में से किसी भक्त की प्रगति बहुत अधिक हो रही है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा अपने आप को, और हमें वानरों के समान एटलीस्ट इस जगह पे बनना पड़ेगा और उनसे भी बेहतर बनना है कई जगहों पे, राइट। और आप एक बहुत सुंदर चीज यहाँ पे सीख सकते हैं जामवन जी से भी, इट्स कॉल्ड इनविजिबल लीडरशिप, राइट। देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ, मोस्ट ऑफ द लाइफ में हम क्या करते हैं, एक विजिबल लीडर बनने का प्रयास करते हैं कि सामने बैठ के हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, सामने बैठ के हम पूरा प्रोग्राम मैनेज कर देंगे, आपको यात्रा पे ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। या फिर आप मंदिर ऑफिस की बात करें तो सामने बैठ के मैं प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ, रिव्यूज में जा रहा हूँ, सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ। ऐसे करके हम करते हैं अपने ऑफिस में भी, राइट। तो 90% ऑफ हमारी लाइफ जो होती है वो विजिबल लीडर के जैसे निकल जाती है, जहां पे हम फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं कुछ लोगों को, राइट। आप बताइए रामायण के हीरो कौन थे? थोड़ा तेज बोलिए ना। राम बोल रहे कुछ लोग, प्रभु जी ने हनुमान जी बोला। एक्चुअली में हनुमान जी रामायण के हीरो है। भगवान श्री राम तो ऑफकोर्स हैं ही, लेकिन उनसे कहीं अधिक। आप बताइए रामायण का पाठ होता है तो कौन सा पाठ होता है? सुंदरकांड होता है, राइट। सुंदरकांड में क्या लीलाएं हैं? अभी जंप लगाएंगे ना जहां से, वहां से लेके वापस आएंगे ना बताने तक, तब तक सुंदरकांड है। उसमें सिर्फ हनुमान जी है। तो रामायण के हीरो कौन हुए? हनुमान जी हुए ना हीरो, मतलब मेजर हीरो तो हनुमान जी हुए। तो एक्टिव लीडर कौन है? जिसको पूरा फेम मिला, सब कुछ मिला, वो कौन है? हनुमान जी है। लेकिन हनुमान जी याद किसने दिलाया था? जामवन जी ने। कोई बोलता है जामवन जी के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, उनकी फेमस किया उनको किसी ने? नहीं किया ना। लेकिन वो होता है इनविजिबल लीडर। इनविजिबल लीडर भी हमें बनना आना चाहिए अपने जीवन में। आई वॉज गिविंग यू दैट एग्जाम्पल दैट डे, सो आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन माई ऑफिस वेरी ऑफन, राइट। दोनों फीलिंग आती है। अभी मैं इतना कोई बहुत बड़ा लीडर तो हूँ नहीं कि मैं इनविजिबल लीडर बन जाऊँ, मेरे को खुद को अभी विजिबल लीडर बनना है ऑफिस में, लेकिन आई वॉज ट्राइंग टू प्रैक्टिस। तो जब वो सक्सेस मिलने लगी जिनके लिए मैं इनविजिबल लीडर बन रहा था ऑफिस में, तो आई गॉट दैट, आई सॉ दैट, आई वॉज सो हैप्पी कि यार ये वही लोग हैं जिनको हमने आगे बढ़ाया था, एंड दे आर डूइंग सो ग्रेट। लेकिन एक फीलिंग आ रही थी यार मैं भी होना चाहिए था वहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं इनविजिबल लीडर बनना शुरू कर दूँ अभी से ही। तो हमें प्रयास दोनों का साथ के साथ करना है। ऐसे नहीं होगा कि हम एट द एज ऑफ 45 डायरेक्टली इनविजिबल लीडरशिप पे कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। हमारे को इतनी आदत पड़ जाएगी विजिबल लीडरशिप की, हम इनविजिबल लीडर बन ही नहीं पाएंगे। और एक इनविजिबल लीडर जो होता है वही विजिबल लीडर्स बनाता है आगे जाके। समझ में आ रहा है आपको? और जितने ज्यादा विजिबल लीडर्स होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, या फिर अपने इस लेवल पे, इस्कॉन लेवल पे, राइट। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी आगे बढ़िए, जैसे जामवन जी ने किया था। भले ही आपको उसकी ख्याति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन भगवान श्री राम को पता है कि जामवन जी ने क्या रोल अटेन मतलब क्या किया था। वैसे भगवान को पता है कि आप इनविजिबल लीडर बन रहे हो अभी, एंड ही विल बी सो हैप्पी। और हमें उनसे ज्यादा अधिक किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए क्या? हमें वही तो करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को सब पता है कि ये विजिबल है, ये इनविजिबल है, ओके। तो हम करेंगे प्रैक्टिस इसको। जो उस टाइम पे विजिबल लीडर थे, महाभारत में जाके उन्होंने क्या किया? इनविजिबल लीडरशिप का रोल प्राप्त किया। उन्होंने भीम को बोला कि तुम जब भी ऐसे चिल्लाओगे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब ऐसे जब तुम दहाड़ोगे तो उसमें तुम्हारे आवाज में मैं भी स्वयं, मेरी आवाज भी आएगी। और जाके अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ गए, है ना। और जब वो हटे तो क्या हुआ था? उस रथ का पूरा ध्वस्त हो गया था वो रथ, राइट। तो दिख नहीं रहे थे किसी को भी हार्डली कुछ लोगों को पता रहेगा कि हनुमान जी की प्रेजेंस थी महाभारत के युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि सीईओ एंड एमडी ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर कौन थे? हमारे अर्जुन थे और भीम थे। उन दोनों की सहायता वो कर रहे थे, उनको लीड करा रहे थे आगे से, तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन दिखूंगा नहीं कहीं पे भी। तो वही विजिबल लीडर एक समय आने के बाद स्वयं क्या बन गया?
इनविजिबल लीडर बन गया। जैसे कुछ लोग रहते हैं अच्छे भी कॉन्टेक्स्ट में, मैंने बताया आपको विजिबल इनविजिबल लीडरशिप फॉर्म में, और एक थोड़ा गलत कॉन्टेक्स्ट भी है कि जामवन जी से पूछा, आप बहुत पूछ रहे हो सबसे कि कितना छलांग लगा सकते हो, कितना छलांग लगा सकते हो, आप कितनी लगा सकते हो ये तो बताओ। तो बोला एक समय था जब मैं वामन देव ने अवतार लिया था, उस समय पे मैंने 21 बार उनके पूरे पैर की परिक्रमा करी थी। वो वही पैर है जिससे सारे ब्रह्मांडों को नाप दिया था, मतलब पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। उस पैर की मैंने 21 बार परिक्रमा करी थी। तो मैं मेरे समय में बहुत कुछ कर सकता था। तो कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में ही जीते कि हमारा एक समय था जब हम ऐसे कर लेते थे, वैसे कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे। अरे दादा, आपका समय गया। आप अभी क्या कर सकते हो ये बताओ। हमारे ऑफिस में भी लोग रहते हैं, जब हम यहाँ पे थे ना, इस कंपनी में हम ये करते थे, वो करते थे, महिंद्रा में या फिर मैं बोलता हूँ होंडा में। अभी क्या कर रहे हो आप? यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग टुडे एंड व्हाट यू कैन डू टुडे। आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट पॉइंट, नॉट व्हाट यू यूज्ड टू डू। तो हमें वो समय बीत गया है, तो उस बातों को भूल जाना चाहिए और अभी हम क्या कर रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो विल एग्जैक्टली वी हैव क्लोज्ड एट द राइट टाइम by the mercy of Lord. So we would like to thank you all for coming today for this session. See our scriptures in this fashion, then you will be able to relate more in today's context and you will be able to apply more in everyday's life. हर एक जीवन के हर एक समय में हमको इनको अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैंने आपको हमारे बहुत एग्जाम्पल दिए ना अभी ऑफिस के निकाल के, वैसे आपको बार बार सोचिए, जैसे गुलाब जामुन आता है आपको नहीं खाना चाहिए, ये वाली है, ऐसे सिंपल। ये वाली प्रकट हो गया मेरे सामने, नमस्कार वाली जी, आप जा सकते हैं, है ना। भगवान श्री राम कोई ऐसे बहुत ही सुंदर सा फेस लेके आ रहा है तो आप उनको बोलिए कि आई एम फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ योर स्माइल, एंड आर यू एबल टू फील यूज विद माई फेस? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्रयास करूँगा वापस से। फिर दशानन, दशरथ, 10 इंद्रिया, मन कंट्रोल में रखेंगे तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में अवतरित होंगे। अयोध्या, जहाँ पे कोई युद्ध नहीं होता है, क्या हमारे घर में युद्ध हो रहा है? क्या हम लंका वासी है? क्या हम किष्किंधा वासी हैं? क्या हम अयोध्या वासी हैं? वो सारा जो मैंने आपको बताया, ग्रेटफुलनेस, किष्किंधा वासी जैसे नहीं रहना है। अभी आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है प्रभु जी, हाँ बहुत ग्रेटफुल है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वापस। सुबह है अयोध्या वासी और शाम होते होते लंका वासी, है ना। और स्टोरी सुनाई मैंने आपको 2, वो आप याद रखिए। ठीक है, सो विल जस्ट पार्टिसिपेट इन कीर्तन नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।